Before I start the class, I wanted to ask you, आप लोगों में से किसके मन में मोक्ष की अभिलाषा उत्पन्न हो चुकी है और वो समाहित करना चालू कर दिया है या उन्होंने किसी तरह की धर्म एक्टिविटी चालू कर दी है? Just unmute yourself and let me know. जो लोग पहले से करते थे, I don't want to know about them. I'm bothered about जो कुछ भी नहीं हो रहा और जो कुछ भी नहीं करते थे, उनमें कोई है जिनका चालू हुआ है? I have started Samai, which I never used to do. Okay. Samai, you start. I can't hear. Volume nahi hai. Me at all? Yeah, now I can hear. Okay. Okay. Again, volume nahi aa raha hai. Volume is better or no? हाँ, now it's coming. It's again stopping and coming. अभी बराबर आ रहा था. Let me give it a try once. Yeah, now it's coming. Now it's coming. Let's see. I hope it comes. Okay. Yeah. It's coming. Yes. Okay. Kajal, just tell me, एक समय की था कि कुछ और भी चालू हुआ है सर? One Samaik has started, and not regularly, but yet I did. Which I was trying since many years, but I have never done. But now I have started on my own to do. Okay. And Moksha ki Abhilasha, has it started? Has it come? Yes. Little. Whatever you're teaching by that, at least I do tell myself once a day or alternate day. Once I keep telling myself. Okay, I'm doing this for moksha. I want to really go to moksha. Okay. Yes. और इसमें कोई argument नहीं. Your Atma does not argue with you कि यार it's an impossible job. तुमको कुछ ज़्यादा ही बड़ा ड्रीम बना लिया है कि तुम महावीर स्वामी भगवान जैसे बन सकते हो. ऐसा कोई sentences तुम्हारा system नहीं बोल रहा है. No, it doesn't tell me, because now I know I'm doing it for moksha. Now I don't know whether it's difficult or not difficult. I'm not contemplating on those words only. I'm just saying I want to go to moksha. Yeah, Kajal, क्योंकि the concept के भैया मुझे मोक्ष जाना is not, ये digest ही नहीं हो पाता है. It's a very difficult thing, right? Everybody saying so यार, you are aiming too high, or that's it's like a lot of people think you're insubordinating Mahavir Swami Bhagwan. अरे वो भगवान रहेंगे and we'll always be here. It's like Bhagwan will always remain here and we will always be smaller, right? But Bhagwan is saying no, it's the same level which we have to become. That's a difficult thing. So you have, मोक्ष की अभिलाषा भी, यदि ये काजल तुमको पहले से पता था कि ये मोक्ष के लिए किया जाता है धर्म? No. Okay. So I never expected I had to think to reach there. I never had it in mind also. Okay, great. First, Kajal, even if one case is like that, I think it's a success story as far as my class is concerned. I'm just happy. Okay, so what I wanted to tell you, Kajal, is that I'm Shobha. My daughter on laptop I'm talking on. Okay. Shobha, the thing is, how we go about it is कि यदि मोक्ष की अभिलाषा तुम्हारे में चालू हो गई है ना, you have to build it up. मतलब इतनी भी मोक्ष की अभिलाषा होती है, इतनी भी हो सकती है और इतनी उत्कृष्ट भी हो सकती है, right? कि literally you are desperate, right? You go like, I don't know, but I believe we need to get out of this sansar and go to moksha, okay? So sky is the limit there, okay? So keep on increasing. You saying कि मैं एक और दो दिन के अंदर एक बार बोलती हूँ, increase that, because that will sustain a lot of things, okay? Another thing is कि चारित्र तुमने बोला कि एक समय चालू हो गई है, okay? Now generally I don't push for चारित्र, right? क्योंकि क्या होता है, generally हम लोग जब हम लोग किसी से सीखते हैं, महाराज साहब से सीखते हैं, किसी से सीखते हैं, तो generally we are in समय, right? तो हमारे में चारित्र इतना होता है तो कर्म इतने हटते हैं, मतलब कर्म इतने हट रहे होते हैं कि the full of ज्ञान and दर्शन, चारित्र is anyway बहुत strong high level पे चले जाते हो. But because of these special circumstances, जब हम बाहर नहीं जा रहे हैं किसी के घर और हमको इंटरनेट पे पढ़ाना पड़ रहा है, things like that, right? हम जीवों को मार के कर रहे हैं. So जब ये प्रोग्राम खत्म हो जाता है, then we sit in samai and do our charitra. Like this itself does not become charitra. Are you understanding? Like you listening here is not charitra, right? It might be just ज्ञान, right? It's just simply ज्ञान transfer, okay? So charitra के बिना कर्म नहीं हटते हैं.
कर्मों को हटाना है, जिसकी वजह से एक लेवल क्रिएट होता है टू एब्जॉर्ब द बेसिक्स, मतलब ज्ञान को एब्जॉर्ब करना या जिस सिचुएशन को एब्जॉर्ब करने के लिए भी थोड़ा चारित्र चाहिए, राइट? तुमको लग रहा है कि यार मेरी एक समायक चालू है, एक समय में इतने कर्म हटते हैं कि तुम थोड़ा लेवल पे पड़ जाते हो, बट दिस पॉकेट ऑफ पुण्यवानी जो तुम क्रिएट कर रही हो एक समायक से, मतलब जो एक पॉकेट क्रिएट होती है वेयर यू आर एबल टू डू वन समायक, यू कांट टेक इट फॉर ग्रांटेड. क्योंकि अभी मैंने अंतराय कर्म नहीं सिखाया, असाता वेद्य कर्म आई हैव नॉट टॉट यू, बट सून यू विल रियलाइज, मान लो 8 कर्मों में से किसी भी गंदे कर्म का प्रगाढ़ उदय हो गया, मतलब कोई बहुत बड़ा कर्म उदय में आ गया ना, दिस विल शट डाउन. एंड तुमको लगेगा यार, मतलब तुमको लगेगा यार मैं करती थी, मैंने कितनी अच्छी क्लासेस की, मुझे सब कुछ समझ में आ गया, एंड देन somehow it just stopped and I am busy with samsara and I could not go back, right? And then after 10 years you realize, अरे यार मैंने वो 2-3 महीने बहुत अच्छा किया था, then what happened to it? 9 years wash out, right? Right. And then all you can do is dream about those days and not understand what went wrong. I'll tell you what can wrong with in this scenario, right? कोई भी अंतराय कर्म का प्रगाढ़ उदय होगा या असाता वेदनीय का उदय होगा या ज्ञानावरणी का उदय हो सकता है, किसी भी कर्म, 8 कर्मों में 8 मतलब आयुष कर्म को जो कि मतलब बाकी कोई भी कर्म का इतना प्रगाढ़ उदय हुआ ना तुम्हारा, राइट? तुम्हारा ये क्लास भी शट डाउन हो जाएगी. आई एम टेलिंग यू, क्लास शट डाउन टू सस्टेन दैट मच. कुछ तो बेसिक, आई मीन आई एम जस्ट आस्किंग यू, कुछ तो कमाई करनी पड़ेगी ना, कुछ, यू अंडरस्टैंड द कमाई, राइट? थोड़ी संवर निर्जन तो करनी पड़ेगी ना, राइट? कमाई के बिना क्या कैसे सस्टेन करोगे, राइट? तो थोड़ी कमाई, मैं ज्यादा कमाई की बात नहीं कर रही, थोड़ी कमाई कर रही है, मतलब थोड़ी संवर और निर्जरा करते रहो. वन समय अपनी लाइफ में डेली लाओ सब लोग, राइट? इसलिए लाओ कि यार ये जो विंडो खुला है ना, दिस डज नॉट शट. मतलब ये विंडो का मतलब ये होता है, आई एम टेलिंग यू, इसको विंडो बोलो या ग्राफ्स बोलो, यू नो. मैं भी ऐसे, व्हेन आई स्टार्टेड जैन धर्म ना, आई वुड डू धर्म ध्यान, लिटरली आई वुड बी लर्निंग, राइट? 1 महीना तक किया एंड देन समथिंग वुड हैपन एंड इट वुड जस्ट शट डाउन. Then after 15 days I would realize, अरे यार 1 महीना कितना मजा किया, and why is it not happening? And then I would इतनी मेहनत लगती थी रीस्टार्ट करने में, बहुत मेहनत है, मन नहीं करता था, मन करता था यार लिटरली समय पे बैठ के गए तो मजा नहीं आ रहा है, you know, and all those things. Then after a lot of push, फिर से मजा आने लगता था. After 2-3 months again the graph will go in the zero मतलब zero धर्म ज्ञान, right? Again you build up the graph, the graph would keep on going like this. It's known as, you know, that's what I call a window. Okay, जब when you are doing some dharam is a very good window, right? जब तुम धर्म कर रहे हो, that will not be, you will not be able to keep it open if you don't do a bit of charitra. So कोशिश करते रहो समाय करने की, और यदि तुम जवान हो तो व्रतों में घुसो. Start with नवकारसी, start with basics. I'm not talking about big thing. दो खाना जब खा लिया हो, ब्रेकफास्ट खा लिया हो, लंच में पता है अभी कुछ खाना नहीं है, राइट? पचकान कर लो, अपने आप पचकान में चलते जाओ, राइट? If you don't know how to do पचकान, I'll teach you right now. 3 नवकार गिनता, अच्छा वैसे भी कर सकते हो, राइट? या तो सिर्फ भगवान की आज्ञा लेना जरूरी है. पहले किसी भी 5 पद, सूर्य सुगुरु सुधर्म, इन तीनों में से किसी की भी आज्ञा लो, राइट? लाइक आई डू इट एवरी टाइम फॉर महावीर स्वामी भगवान, बट यू कैन डू इट फॉर एनीबडी, राइट? आज्ञा लेना जरूरी. जैसे लाइक आई से, भगवान आपकी आज्ञा है पचकान करने की, आज्ञा ली. उसके बाद जो भी पचकान लेना है, हिंदी में मतलब हिंदी में भी डिस्क्राइब कर सकती हो, राइट? कि अभी से लेके चाहिए, राइट? तो उसमें क्या क्या एलिमेंट होने चाहिए. सो विनय के लिए करेनी भंते वर्ड यूज होता है, लाइक आई वांट टू डू भंते. भंते इज लाइक अ काइंड ऑफ अ रिस्पेक्ट नेम, राइट? सो करेनी भंते, या सो राइट, आज्ञा लो, पहले किसी की भी आज्ञा लो, सुदेव सुधर्म की, राइट? आज्ञा ली. Then the second step is करेनी भंते वर्ड बोलो, ऐसे ही just as if you're talking to भगवान महावीर स्वामी भगवान, right? I want to do भगवान करेनी भंते. नहीं, पहले इससे पहले आज्ञा लिखो. आज्ञा या शोभा प्लीज आज्ञा लो. चीज में आज्ञा के बिना धर्म डज नॉट सस्टेन, विल नॉट क्वालिफाई धर्म. ओके, पहले भगवान आपकी आज्ञा लेती हूँ, देन करेनी भंते वर्ड यूज किया. उसके बाद पचकान का नाम बोलो, मतलब मैं क्या करना चाहती हूँ, क्या मैं पानी छोड़ना चाहती हूँ, खाना छोड़ना चाहती हूँ, या मैं मौन बोलना छोड़ना चाहती हूँ, मैं मौन लेना चाहती हूँ, या कुछ भी, एनीथिंग, जस्ट नेम. इट कैन बी इन हिंदी. सो डिस्क्राइब व्हाट यू आर डूइंग, क्या चीज का पचकान लिया, राइट? ओके, पचकान. देन गोज कितना टाइम ड्यूरेशन मतलब इट कैन बी फ्रॉम नाउ टिल 3:30 और लाइक 4, यू नो, इट्स अ मैटर ऑफ 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, एनीथिंग.
you don't have to, it doesn't have to be technical भाषा, हिंदी में बोलो, इंग्लिश में बोलो, who's telling you not, right? आपको समझ में, क्या कर रहे हो, टाइम आ गया, right? यदि तुमको 3 करण 3 योग समझ में आता है, right? कितना करण का मतलब होता है करूं नहीं, कराऊं नहीं, अनुमोदू नहीं, ये 3 करण होते हैं, राइट? और मन वचन काया ये योग होते हैं, इनके कॉम्बिनेशंस होते हैं. जैसे समायक होती है 2 करण 3 योग से ली जाती है, राइट? करूं नहीं, कराऊं नहीं और मन वचन काया. नहीं समझ में आता है ना तो इसको छोड़ ही दो. आई मीन इफ यू कांट, जब तक तुमको ये ज्ञान नहीं होता है इस चीज को ड्रॉप कर दो, राइट? एंड में बोलो अनथाना भोगेनम, राइट? अनथाना भोगेनम, अनथाना भोगेनम, सरसा गारणम, अनथाना भोगेनम, या भोगेनम, या and second अनथाना भोगेनम, सहसा गारणम, सरसा, या सरसा सहसा गारणम, गारेनम, या सरसा गारेनम, सव समाई वत्या गारणम, सव समाही समाही वत्या वत्या गारणम, गारेनम, अप्पाणम अप्पानम, वो सिरामी, वो सरामी. या सी आई विल, मैं क्या करूंगी क्लास के बाद व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आई विल पुट दीज लाइंस व्हाटएवर आई हैव जस्ट टोल्ड यू, राइट? Okay. सो राइट, सो दीज लास्ट के जो 3 वर्ड है ना, अनथाना भोगेनम, सरसा गारणम, सव समय, ये तुम्हारे आगार है. मतलब यदि गलती से मुंह में चला जाता है पानी, लाइक पानी का पचकान लिया है, लेकिन लाइक बारिश में तुम गए, बर्तन धो रहे हो तो पानी गया, लाइक आई डिडंट, मतलब I just forgot about it and things like this. अनथाना भोगेनम, सहसा गारणम, और ये सब समय वत्या गारणम इज अ टेक्निकल थिंग कि यदि समाधि ही नहीं रही, मतलब all समाधि is gone, right? Like hell is loose, right? Things have gone totally haywire, right? Then I will break the pachkan. So ये 3 आगार है, अनथाना भोगेनम, सहसा गारणम, सब समय is the आगार मतलब you're allowed to do anything wrong because of this. Are you clear? Okay. ये 3 आगार है. एंड वो सिरामी मीन्स छोड़ता हूँ, मतलब जब वो सिरामी बोलते हो तब से पचकान ऑपरेट होता है टिल द टाइम यू आर डूइंग. ओके, अप्पानम वो सिरामी, अप्पानम वो सिरामी इज मतलब आई एम लीविंग दैट थिंग. ओके, तो क्या छोड़ा है? जैसे मैंने पानी छोड़ दिया है इतने ड्यूरेशन के लिए, राइट? ओके, तो इतना हो गया. 3 आगार हो गए. करण और योग अभी नहीं मैंने सिखाया, जब सिखाऊंगी देन यू कैन ऐड दिस इन द पचकान आल्सो, राइट? बट this is good enough. पर पचकान लो, पचकान के अंदर जितना जाओगे that is the चारित्र. Okay? Even though I am not pushing for चारित्र, but यदि विंडो खुले रखने के लिए प्लीज कर देना. I am just telling you, otherwise you will not be able to sustain these classes also. Right. Otherwise you will recall me after 10 years or 20 years and say, yaar, those days I could have been बताया था. Yeah, Jainism, right? So yeah. Okay, Ashima ji. Yeah, Rashi, tell me. In fact, मेरा 2 साल पहले I had learned my full samai by heart. I had learned quite, I think Namothunam and everything I learned by heart. 3-4 महीना और फिर छूट ही गया. छूट नहीं गया, इसको बोलते हैं प्रमादता. करम वन, आई मीन करम जीत गए. करम ने तो चुप करके बिठा दिया, शट अप, नॉट टू समाई, डोंट डू धर्म, ओके, बिठा दिया. और तुम करम की बात सुन रहे हो, राइट? करम इज स्ट्रॉन्गर. Are you understood? So it's just a war between you and the Karam, and Karam won. You lost. Okay, it's a scenario like that. Okay, yeah. Anyway, thank you, Kajal. Yeah, Rashi, you were trying to say something. Are you there? Rashi, are you there? I think she got disconnected or something. Yeah. Okay. Anybody else wants to share some experiences, anything they're doing? Rashi, if you're there, just come back. Otherwise, we'll go back to this thing. I don't know what happened. हेलो, मैं बताना चाह रही हूँ. Yeah. मैं समय तो पहले नहीं, आप पहले भी करते थे. Yeah. So I am trying to reach out to those people जो zero थे. You understand? Zero. नहीं, पर मेरे में जो चेंजेस आए वो बता रही हूँ.
कि पहले मुझे भी ऐसा होता था कि भावों की उत्कृष्टता कभी कभी आती थी और कभी वापस चली जाती थी, और मैं कोशिश करती थी कि 32 दोष हटा के सामायिक करूं एक। हाँ. इतने मन से करने की कोशिश करती थी, पर ये मोक्ष की अभिलाषा से भावों की अभी जो उत्कृष्टता बढ़ी है, वो सच में अनुभव के लायक है, अनुभव के लायक है। आई एम वेरी हैप्पी यू हैव डन दैट, राइट? हाँ, तो अब चारित्र, जो ज्ञान बढ़ा है तो चारित्र भी बढ़ना चाहिए. ओके, चारित्र भी बढ़ाइए. ओके ओके, राशि, यू आर स्टिल नॉट देयर? Ashima ji, I'm there. I have some connection problems, so I'm just going off and coming back in. And sorry, I was traveling, so I did not attend classes. Okay. Yeah, so Rashi, tell me, is there any difference? Yeah, what do you want to share? Okay, Ashima ji, I do my pachkan. Okay, I take my 3-4 hours का in between. But I just say, मुझे क्या बोलते हैं इसको, चारों आहारों का त्याग है. Or I say anamoryantanam, and when I like eat or drink again, I say namo siddhanam. So is that fine also? Is that fine also? But you should have, कई लोग क्या करते हैं, एक रिंग रखते हैं जिसको छल्ला बोलते हैं. I don't know whether you understand. I have that ring, and Anita has actually sent me that pachkan ka ring. I tried it. I tried it, but मेरा तो खाना खत्म हो जाता है, उसके बाद ही दिखाई देता है यार आज फिर से चेंज नहीं किया. So I'm a pretty disaster at that. But a lot of people are successful there. Okay. No, I can't wear rings. मेरा एक बहुत बड़ा problem है आशिमा जी. I can't wear any ring. Okay, claustrophobia kind of a phase, huh? Okay, fair. Not that way. I don't like it. See, I have nothing on my thing. Okay, so a lot of people say Namo Arihantanam, which is the beginning of Pachkan, and Namo Siddhanam at the end of Pachkan. That also. Yeah. लॉर्ड ऊपर उसका पहले ना वो लोग क्या करते हैं, 1 महीना ट्राई करते हैं, दिस इज सक्सेसफुल, वो इसका पचकान ले लेते हैं महावीर स्वामी महाराज सासी कि जब मैं अरिहंताणम बोलूं, भगवान का नाम बोलूं, तो वो मतलब पचकान मेरा ऑपरेट हो जाए, राइट? और नमो सिद्धानंद बोलूंगी तो वो पचकान क्लोज हो जाए, मतलब वो पचकान पर जाए, राइट, खत्म हो जाए. तो दैट ऑल्सो पीपल डू. पर इसका पचकान लेके आते हैं महाराज सासी कि आज से हम ये करेंगे. नहीं करते ना, प्रोसीजर करना पड़ता है. प्रोसीजर जो मैंने बताया कि उसमें आज्ञा ली जाती है, राइट? सी बार बार पचकान की पूरी विधि, ये जो पूरा है ना, भगवान मैं पचकान लूं, इसके अंदर यू आर अगेन एंड अगेन आज्ञा में ले रहे हो कि पचकान लेना इज इम्पोर्टेंट. भगवान मैं आपकी आज्ञा में हूँ. दैट रीइंफोर्समेंट इज देयर, एंड द कॉन्स्टेंट रीइंफोर्समेंट इज अ वेरी बिग थिंग व्हिच डज विद द आत्मा. लाइक आज मैंने दिन में यदि पचकान लिए हुए हैं तो हर बार खाने से पहले मैं सोचूंगी, मैन डज व्हाटएवर आई एम ईटिंग, राइट, इज इट, कैन आई ईट और नॉट. अच्छा ये आई कांट ईट दिस, आई कैन ईट. ये सब जो दिमाग लगा रही हूँ ना, इसको बोलते उपयोग लगा रही हूँ अपने पचकान के अंदर, विच इज अ गुड थिंग, राइट? तो बेटर है कि आप हर बार आज्ञा लो. आज्ञा के बिना धर्म ही नहीं है. सो यू बेटर टेक आज्ञा ईच एंड एवरी टाइम. I tell you, आज्ञा से जो मजा आता है ना, like you think after a while, you'll realize that you have a direct relationship with anybody, मतलब जिसकी आज्ञा लेते हो. Like I do it with महावीर स्वामी भगवान. I feel महावीर स्वामी भगवान is there with me. Like भगवान पचकान लेने की आज्ञा, it's like he's there with me, right? So after a while, he'll become your friend, best friend. He'll always be there with you. You understand? Huh? That kind of relationship will start. Okay? क्योंकि आगे चल के you're going to start talking about what he believes and what you believe, right? There's going to be a big clash also. So I prefer हर बार आज्ञा लो, हर बार बताओ मैंने क्या किसका पचकान ले रहे हैं, टाइम ड्यूरेशन, आगार यदि रख सकते, मतलब आगार जो अनथा वगैरह संसारण सब समय मत्यगण इज कैजुअल आगार, ठीक है? वो सराम इज द वर्ड यूज्ड टू शट डाउन ऑल द थिंग्स, राइट? और जब पारना हो तो नमोरी हत्ता में बोल के पारना के मैं पारना चाहता हूँ, यदि कोई दोष लगा हो तो 10 में इच्छा. पचकान में यदि कोई दोष लगा हो तो 10 में इच्छा में तो दैट्स इट. I've done a mistake. So will you just वो आप मतलब WhatsApp group में will you send it, because I was not there. Yeah, I'll send you totally. Otherwise I always say मुझे क्या बोलते हैं, तो चारों आहारों का त्याग है. See, you were using technical jargons. चार आहार का त्याग, right? असनम पानम थाइमम साइमम. Now if you know all these technical jargons, well and fine. I am talking about to those people जिनको कुछ नहीं आता. They are talking. I don't know. It is just that my mom-in-law has taught me this, so I'm following it. She also does the same thing, so I'm also following it the same thing. मुझे चार आहारों का त्याग है. Then you need to figure out what is this चार आहार, right? असनम पान खाइमम साइमम की definition पता होनी चाहिए. Till you don't understand,
सरलता से हिंदी और इंग्लिश में भी कर सकते हो, राइट? यू कैन डू इट इन इंग्लिश ऑल्सो, फेयर इनफ, ओके? ठीक है, थैंक यू। या सो व्हाट अभी तक हमने ये समझा है कि थोड़ा सा चारित्र चालू कर दो, बिकॉज अभी जिस मैं कर्म आज हम नया कर्म कर रहे हैं बाय द नेम ऑफ मोहनीय कर्म. दिस कर्म इज बाय फार द मोस्ट इंपॉर्टेंट कर्म. इसीलिए मैं थोड़ा सा स्लो जाऊंगी इसमें, और आपको कभी भी डाउट हो आप उसी वक्त रोक के मुझसे पूछ लीजिएगा कि इसका मतलब नहीं समझ में आया. आई एम स्टार्टिंग, इसमें मैं बहुत टाइम लगाऊंगी. आई विल रियली गो स्लो. मैं आपको बहुत अलग अलग पार्ट्स में पढ़ाऊंगी. इन द लास्ट में मैं असेंबल करके आपको प्रेजेंट करूंगी कि भैया ये होता है. क्योंकि ये जो मोहिनी कर्म यदि आप क्रैक कर लेते हो, मतलब आपको यदि ये दिखाई देने लग जाता है, ऑपरेशनल अपने आसपास ऑपरेट होना दिखाई देने लगता है ना, देयर इज नो वे आप गलत जाओगे. आपको जैन धर्म अच्छे से समझ में आ जाएगा वेरी नाइसली. ओके, सो मोहनीय कर्म की जो डेफिनेशन है, ओके, I hope everybody's taken a printout of this paper I had sent 3-4 days ago. Okay, so I'm teaching from this paper only. मैं मोहनीय कर्म, even though वो फोर्थ कर्म है, but I have not taught the third number का कर्म, जिसको वेदनीय कर्म बोलते हैं. I'm skipping that. There is a reason, क्योंकि वो मैं बॉडी के कर्म एक अलग से मैं करूंगी. I will do first for आत्मा के कर्म I'll handle first, and then I will handle body related कर्म्स. Okay. So that's why there's a purpose that I'm picked up the fourth number of karam and not the third. तो मोहनीय कर्म का नाम क्या है? मोह. मोह का मतलब होता है आत्मा मोहित हो जाती है, राइट? और अपने स्वभाव को भूल जाती है. What I am, I forget. Okay? और दूसरों में प्रीति करवाती है. ये सब मोह की वजह से होता है. मोह मतलब राग एंड द्वेष. There are two things, राग एंड द्वेष. Okay? मोह, are you clear? मोह इंक्लूड्स एंगर ऑल्सो. मतलब इसका नेगेटिव मोह, आप बोलोगे मोह का मतलब पॉजिटिव होना चाहिए. मोह मतलब आई लव समबडी, बट जहां प्यार है वहां हेट्रेट है. जिस दिन प्यार जाएगा हेट्रेट दोनों जाएंगे. या जाएंगे तो दोनों जाएंगे या दोनों रहेंगे. जब तुम वीतराग बनते हो तो दोनों चले जाते हैं. ओके, सो मोहनीय कर्म बेसिकली मोह की वजह से, व्हेन आई बिकॉज ऑफ माई लव एंड हेट, राग और द्वेष, इसकी वजह से मैं आत्मा अपने स्वभाव में नहीं रह के गलत काम करती है. ओके, सो मोहनी कर्म को समझाने के लिए एक पैरेलल्स दिया जाता है कि एक आदमी ने दारू पी रखी है बहुत ज्यादा. मान लो मैंने दारू पी रखी है, तो उसके बाद मैं कार चलाती हूँ. आप खुद बताइए, क्या मेरा मन करता है कि मैं जाके फुटपाथ पे गाड़ी चला दूं और लोगों को मार डालूं? क्या मेरा मन करता है कि किसी को जाके एक्सीडेंट कर दूं? No, I don't want to hurt anybody. I don't want to kill people. But जब दारू पिया होता है, my brain cannot think straight, और वो मतलब it ends up into an accident. I don't want to do an accident. Are you clear? If I'm drunk, because of the state of my mind, it's literally zombing. It's like going it's doing a lot of things. I can't go straight, और मैं एक्सीडेंट कर जाती हूँ, कहीं ना कहीं कर देती हूँ. ओके, सेम वे जैसे दारू पिया हुआ आदमी गाड़ी स्ट्रेट नहीं चला पाता है, राइट? वैसे ही मोहनीय कर्म की वजह से आत्मा जो है अपने स्वभाव को भूल के सारे गलत काम करती है और संसार में रहती है. आर यू क्लियर? मोहनी कर्म को ऑलवेज दारू वाला एग्जाम्पल दिया गया है. सो आपने दारू नहीं भी पी रखी हो तो भी मिथ्यात्व का या मोहनी कर्म का ज्यादा उदय है, तो इट्स स्टिल बैड. यू स्टिल नीड टू वर्क एंड रिमूव दिस ऑल्सो. दिस थिंग वी आर हाई ऑन दिस ऑल्सो, इफ यू थिंक. ओके, सो हाउ डज दैट ऑपरेट? आई विल कम बैक टू ऑल दीज थिंग्स इन डिटेल इन अ मैटर ऑफ टाइम. ओके, मोहनी कर्म में जो फर्स्ट वाला जो पार्ट है ना, मैं इसी को ले रही हूँ. आई एम नॉट गोइंग टू द सेकेंड पार्ट. इसको बोलते हैं फर्स्ट पार्ट, दर्शन मोहनीय कर्म. ओके, Rashi, I think you need to mute the I'm sorry. Screen. Yeah. So मैं सिर्फ दर्शन मोहनीय कर्म अभी करवा रही हूँ. आई एम नॉट गोइंग टू चारित्र मोहनीय. दर्शन मोहनीय में भी काफी दिन लग जाएंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही पार्ट है. आई एम गोइंग टू टेक अ वाइल, एट मिनिमम 5 classes फॉर श्योर. दर्शन मोहनीय जो है वो सम्यक दर्शन के रिलेटेड है. याद है मैंने आपको
मोक्ष तत्व जब कराया था तो मैंने 3 चीजें आपको पढ़ाई थी, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र। ओके, तो उसमें जो सम्यक दर्शन जो था वो दर्शन मोहनीय कर्म के रिलेटेड है। ओके, और जो मैंने सम्यक चारित्र जो 3rd वाला करवाया था वो चारित्र मोहनीय कर्म रिलेटेड है। सो वी आर नॉट डूइंग चारित्र एंड वी आर नॉट डूइंग ज्ञान। ज्ञान हो गया, ज्ञानावरणी कर्म में खत्म हो गया, ज्ञान और दर्शन में खत्म हो गया। What we are dealing with right now is सम्यक दर्शन वाला टॉपिक in the दर्शन मोहनीय कर्म। ओके, so let us start कि what is सम्यक दर्शन। लोगों से पूछा जाता है तो लोग सोचते हैं पता नहीं क्या चीज है यार, सम्यक दर्शन कोई बड़ी चीज होनी चाहिए, सम्यक दर्शन बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, राइट। असली स्वरूप ऑफ सम्यक दर्शन इज डिफिकल्ट टू क्रैक। I took 5 years to crack that whole theory of what is Samyak Darshan, what to do about it, and how it has a role in our life, and what I can do to understand that, right? So it's not going to be easy. तो मैं छोटे छोटे पार्ट्स करके ना आपको उसको डिकोड करने की कोशिश करती हूँ। ओके, तो आज जो हम उसको डिकोड कर रही हूँ ना उसमें बता रही हूँ कि व्हाट इज सम्यक दर्शन। इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है, सम्यक दर्शन आत्मा का एक गुण है। राइट डाउन, इट इज एन आत्मा का एक गुण। मैंने पहले आपको बताया था कि आत्मा के अंदर ज्ञान गुण रहा हुआ है, आत्मा के अनंत दर्शन गुण रहा हुआ है, जो हम 2 कर्मों को देख चुके हैं। सो सम्यक दर्शन आत्मा का गुण है। सो एवरीबडी हैज इट। एवरीबडी का मतलब ये है आप में है, मेरे में है। तो क्या जो सड़क पे चलने वाला कुत्ता है जिसको हम लोग रोज डंडा मार देते हैं और चींची जिसपे हम स्प्रे मार के मार डालते हैं, कॉकरोच और छिपकली whom we hate like nobody's business, क्या उनमें सम्यक दर्शन गुण है? Right? The answer is yes. Everybody has सम्यक दर्शन. Is there a जीव which does not have सम्यक दर्शन? No, there is no जीव. If a person has जीव, उसके पास आत्मा होगी और आत्मा सेम है सबकी। महावीर स्वामी भगवान की आत्मा सेम है, मेरी आत्मा सेम है और कुत्ते की आत्मा सेम है। I've told you this long. I keep giving this example a lot of time, right? So वैसे भी सबके अंदर सम्यक दर्शन है। यदि महावीर स्वामी भगवान के अंदर सम्यक दर्शन है तो मेरे अंदर भी है और वो कुत्ते में भी है, छिपकली में, कॉकरोच सब में है सम्यक दर्शन। आर यू क्लियर? बिकॉज ये आत्मा का गुण है। सो कैन आई गिव इट टू यू? कैन महावीर स्वामी भगवान गिव इट टू यू? कैन somebody give it to you? Right? The impossible thing, but you already have. I already have it inside my atma. How can somebody give it to me? Can Mahavir Swami Bhagwan give it in a packet and say, "अरे ये ले लो," right? भगवान ज्ञान दे सकते हैं, महावीर स्वामी भगवान ज्ञान दे सकते हैं, पर सम्यक दर्शन तो मेरी आत्मा में अंदर रहा हुआ है। ओके, सो वन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ सम्यक दर्शन इज ये आत्मा का गुण है। फिर इसको कहा जाता है कि भगवान मुझे सम्यक दर्शन चाहिए, सम्यक दर्शन चाहिए। अरे हम क्यों ये बोलते रहते हैं भगवान सम्यक दर्शन चाहिए? देयर आर लॉट ऑफ पर्यायवाची वर्ड्स। लोग ग्रंथि भेद वर्ड यूज होता है, भगवान कर जो ग्रंथि भेद, मतलब एक भजन भी है जिसकी लाइन है भगवान कर जो ग्रंथि भेद। फिर इसके बहुत सारे पर्यायवाची वर्ड है, सम्यक दर्शन, प्रथमोक्षम, फिर इसको सम्यक दर्शन की स्पर्शना बोलते हैं, एवरीथिंग। बेसिकली सम्यक दर्शन जो है ना, people ask for it. If you already have it, why are you asking for it? Because इसका रीजन है क्यों लोग मांग रहे हैं। क्योंकि आपको पहले भी बताया था कि एक अंगूठी है मेरे पास डायमंड की बहुत बड़ी, लेकिन उसके ऊपर कचरे का लेप है, समझो कीचड़ का लेप है। वो इस तरह से लेप है कि वो अंगूठी बाहर दिख ही नहीं रही है। इफ आई वॉन्ट दैट अंगूठी, व्हाट डू आई नीड टू डू? आई जस्ट नीड टू रिमूव द कचरा ऑन टॉप ऑफ द अंगूठी। जब मैं रिमूव करूंगी तो व्हाट आई गेट इज द अंगूठी। वैसे ही सम्यक दर्शन सब में है, पर प्रॉब्लम ये है उसके ऊपर एक गंदा कचरा चिपका हुआ है, कर्म, गंदा कर्म रूप का कचरा चिपका हुआ है। तो व्हाट इज द नेम ऑफ दैट कर्म जो हमारे ऊपर चिपका हुआ है? दैट कर्म का नाम है मिथ्यात्व। उसको बोलते हैं मिथ्यात्व मोहनीय। उसका बड़ा नाम है मिथ्यात्व मोहनीय, उसको मिथ्यात्व भी बोलते हैं।
सो अगेन द क्वेश्चन, अभी मैंने आज की क्लास में 2 अक्षर सिखाए आपको. सम्यक दर्शन आत्मा का गुण है और उसके ऊपर गंदा कचरा चिपका हुआ है कर्म रूप में, जिसका नाम है मिथ्यात्व मोहनीय. आशिमा जी, या ये जो कचरा है वो किसके ऊपर चिपका हुआ है? आत्मा के ऊपर? हाँ, आत्मा के ऊपर चिपका हुआ है जो Okay. सम्यक दर्शन गुण को प्रकट नहीं होने दे रहा है. ओके. ओके, ठीक है. आई जस्ट एक्सप्लेन, अंगूठी का एग्जांपल है ना, जिससे उसमें Right, चिपका हुआ है. सो इफ यू वांट सम्यक दर्शन, व्हाट डू यू हैव टू डू? Do you need to do सम्यक दर्शन? No, you already have it. What do you need to do? You have to remove the kachra. How do I remove the kachra? I remove the mithyatva mohini karan. Are you understanding? So I will take a whole one class on how to understand mithyatva mohini. Okay, what exactly it is, this karam is, and how do you remove mithyatva mohini. I'll have a 1-day class, but not today. Maybe some subsequent class. Okay, today I'm going to explain to you something more about सम्यक दर्शन only. पर आपको ये 2 अक्षर समझ में आ जाने चाहिए. मिथ्यात्व मोहनी इज द कर्म, गंदी चीज. इट्स अ गंदा कर्म. ओके, जो चिपका हुआ है आत्मा के ऊपर, जो सम्यक दर्शन गुण को प्रकट नहीं होने दे रहा. आर यू क्लियर? ओके, सो 2 अक्षर समझ में आ गए आपको. मिथ्यात्व मोहनी क्या करता है, कैसे करता है, उसका रोल क्या है, उसकी जॉब क्या है. एज आई टोल्ड, आई विल बी टेकिंग इन द नेक्स्ट क्लास. So, इस क्लास में मैं क्या कर रही हूँ, आपको सम्यक दर्शन गुण को प्रकट करने की का इंपॉर्टेंस बताना चाहती हूँ कि why the hell do I need सम्यक दर्शन? I mean, do you need सम्यक दर्शन? Like if I'm telling you need that, like जैसे मैं आपको आके बोलूँ यार आपको 1000 रुपया तो हर आदमी के पास होना चाहिए, right? So I have to prove it to you कि भैया तुम घर से बाहर जा रहे हो, right? कि कभी कार में आना, टैक्सी में आना पड़ सकता है, कभी आपकी गाड़ी खराब हो जाए तो you might have to take that, आपको घर रास्ते में काम हो जाता है. So 1000 rupees in your purse. I have to prove it to you ना. आजकल के बच्चों को बोलना पड़ता है you need to buy something, सीखना होना चाहिए. वैसे ही I need to prove it to you why you need सम्यक दर्शन. Okay? So आज की क्लास is all about why do I need to remove मिथ्यात्व के कर्म and इस गुण को क्यों प्रकट करना है. I'm starting with that. Okay? Okay, the first thing is, आपने किसी की भी स्टोरी पढ़ी है, कोई भी तीर्थंकर चारित्र नाम की बुक है जिसमें ऋषभ देव भगवान से लेके महावीर स्वामी भगवान तक सब तीर्थंकरों की स्टोरीज हैं. पर कोई भी स्टोरी एक भव से चालू नहीं होती है. एक भव से चालू नहीं होती है मतलब यदि आप महावीर स्वामी भगवान की स्टोरी पढ़ोगे ना तो नायसार के भव से चालू होगी. And then it says मुख्य भव. मुख्य भव का मतलब होता है कि भगवान ने 27 मेजर बड़े भव किए. जैसे सबसे पहले नायसार का भव किया, उसके बाद मर के देवलोक में गए, उसके बाद मरीचि का 3rd भव इस मरीचि, आप कभी भी देख लीजिए 3rd भव मरीचि, मर के देवलोक, अगेन देन साधु बट हिंदू साधु. इस तरह से करते करते जो लास्ट भव महावीर स्वामी भगवान का था, that was the last. उसके बाद वो सिद्ध हो गए. तो my question is, why is महावीर स्वामी भगवान की स्टोरी starting from 27 भव पहले, from नायसार के भव से? Why do I have to hear महावीर स्वामी story from नायसार भव and not from the last भव? क्या उससे पहले महावीर स्वामी भगवान ने कोई भव नहीं किए थे? Did he not exist? मतलब did his आत्मा not exist at all? तो आंसर है नो, ही एग्जिस्टेड बिफोर दैट ऑल्सो. बट नायसार के भव में उन्होंने सम्यक दर्शन की स्पर्शना की थी. उस भव में आपकी स्टोरी, आपकी क्या, हर आदमी की, चाहे पार्श्वनाथ भगवान की भी ले लो, किसी के 9 भव मुख्य हैं, मल्लीनाथ भगवान के 3 भव हैं. सभी तीर्थंकरों के आप देखिए स्टोरीज, उसमें लिखा होता है मुख्य भव कितना किया. जैसे पार्श्वनाथ भगवान के 10 भव बोले जाते हैं, किसी के 3 होंगे, किसी के 12 होंगे, किसी के अलग अलग होते हैं. महावीर स्वामी भगवान के बहुत ही जरूरत से ज्यादा थे, 27. Now that first भव से पहले भी बहुत भव थे, but they were not counted, they are not even worth mentioning. What happened in that first भव? आप ध्यान से पढ़ोगे ना कोई भी तीर्थंकर का,
उस भव में उनको सम्यक दर्शन की स्पर्शना चालू हुई। यानी फ्रॉम दैट डे उनकी स्टोरी स्टार्टेड गेटिंग काउंटेड। तो आप समझ लीजिए, आपने सम्यक दर्शन की स्पर्शना कर ली है, तो तीर्थंकर भगवान या केवली भगवान के ज्ञान में आपकी स्टोरी चालू हो गई है। बट यदि आपने सम्यक दर्शन की स्पर्शना नहीं की है, आपके अभी भी भाव ऐसे ही चल रहे हैं, मतलब पैदा हो रहे हो, मर जाओगे, फिर कहीं और पैदा होगे, फिर मर जाओगे। It's going to keep on doing, but your story will only start, right? जब आपको जिस भाव में सम्यक दर्शन की स्पर्शना होगी। I'm just asking you, do you want your story to start, or you're happy with जीना, फिर मर गया, फिर जी लिए, फिर मर गए? I mean, you're happy with that, or you really want, नहीं यार मोक्ष जाना है, I need my story, मतलब सम्यक दर्शन करो, and then I do some herbs and then I go to moksha. You want that, right? If you want that, you have to do सम्यक दर्शन की स्पर्शना. Okay? Any story starts with that. Okay? The second thing, the second reason why you need सम्यक दर्शन की स्पर्शना is, without सम्यक दर्शन की स्पर्शना, you can't do samvar, you can't do sakam nirjara, you can't do, not possible without सम्यक दर्शन। आप कितनी भी अठाइयां कर लो, कितने भी वर्षी तप कर लो, कितनी भी धर्म ध्यान की उत्कृष्ट साधना कर लो, कितना भी धर्म ध्यान कर लो, और पिछले भावों में भी आपने आई एम श्योर बहुत जबरदस्त साधना की होगी और फ्यूचर में भी करोगी, बट सम्यक दर्शन की यदि स्पर्शना आपने नहीं की है, तो एक्चुअली ना आपका संवर ऑपरेट हो रहा है अठाई करके, और न सकाम निर्जरा ऑपरेट हो रहा है। अठाई, वर्षिता, रात्रि भोजन त्याग, नवकारसी, नथिंग इज क्वालिफाइंग संवर, नथिंग इज क्वालिफाइंग सकाम निर्जरा। पुण्य का बंद कर रहे हो, पुण्य का बंद करके देवलोक में जाके बैठ जाओगे और कुछ नहीं होने वाला आपका। बट इफ यू वॉन्ट टू गो टू मोक्ष, इफ यू वॉन्ट कि मेरा संवर हो, मेरा सकाम निर्जरा चालू हो, जिसको करते करते मैं मोक्ष जाऊं, सम्यक दर्शन हैज टू बी देयर। इसका मतलब यदि सम्यक दर्शन है तो सेम एक्टिविटी, चाहे वो रात्रि भोजन त्याग हो, नवकारसी हो, सामायिक हो, अठाई हो, जो भी आप कर रहे हो, जो भी चारित्र, जो भी कर रहे हो, राइट? सम्यक दर्शन है तो वो संवर को भी क्वालिफाई करेगा, निर्जरा को भी क्वालिफाई करेगा। यदि नहीं है सम्यक दर्शन, तो वो पुण्य का बंद करा के तुमको देवलोक में जाके बैठा देगा, इतना कर सकता है वो। दैट्स ऑल यू आर डूइंग। ओके, हमेशा आगम में कहा जाता है, आई भगवान महावीर स्वामी भगवान, संवर निर्जरा ही धर्म है। हर बार कहा जाता है संवर निर्जरा धर्म, केवली भाषिक शास्त्र, ये जैन धर्म का मर्म, इस तरह के भजन के लाइन्स है। हर आगम में संवर और निर्जरा तत्व को ही मोक्ष मार्ग बोला है। तो आप सोचो, बिना सम्यक दर्शन के ना संवर ऑपरेट हो रहा है, ना निर्जरा ऑपरेट हो रही है। ओके, सो Ashima ji, Swati, tell me. Yeah, I have a question. ये सम्यक दर्शना की स्पर्शना होती तो कैसे पता चलता है कि सम्यक दर्शना की स्पर्शना हुई है? Okay, I'll come to that after a while. Okay, I'll come to that in a matter of time. Sure. Okay. If I still don't do that within 2 or 3 classes, ask this question again. Okay, then I'll start explaining. Sure. Because I'll have to explain. First, I'm just going to talk on Shuksham Samyak Darshan, and after some days I'll go to another word called Upsham Samyak Darshan. दोनों के characteristics, analysis, अनुभूति, सब कुछ अलग अलग है. Everything is different. So I'll go slow. I will not mix up and do a khichdi because I need to make you visualize, right? So to make you visualize, I would rather go slow rather than go fast and mess up your head. Okay? Because if I took 5 years, I mean, I'm telling you, it's not an easy thing. I mean, it's not an easy thing. I really worked hard, and if I took 5 years, it's not going to be easy for you to figure it out. So let's go slow. But if I don't do that within 3-4 classes, if you're unable to get that in your head, then start asking to this question again. Okay. So are you understanding? No Samvara and Nirjara is possible? Okay.
Again, a second question, is moksha possible without Samyak Darshan ki Sparshna? Has anybody been able to go to moksha without Samyak Darshan ki Sparshna? The answer is no, not possible. पहले Samyak Darshan होगा, then only moksha. Is it possible पहले मैं मोक्ष चली जाऊंगा फिर Samyak Darshan प्राप्त करूं? Is it possible? Not possible. Again, are you clear? This itself proves कि Samyak Darshan is the beginning thing. Begin करता है Samyak Darshan. उस that verb starts counting from there. Okay? तो इसको समझाने के लिए ना आगम बोलता है कि मोहिनी कर्म की उत्कृष्ट स्थिति मतलब होता है कि यदि मैं मिथ्यात्व अवस्था में हूँ, बड़ी गद्दी अवस्था में हूँ और मैं कुछ बहुत गद्दे उल्टे सीधे काम कर रही हूँ, तो मैं मैक्सिमम 70 करोड़ कोड़ी सागरोपम का बंद करती हूँ, which is a very big magnitude of time. मतलब 70 करोड़ into 1 करोड़ सागरोपम. Now सागरोपम is also very good, very big time, very big time. इतने का मैं बंद करती हूँ. मान लीजिए मैंने किसी का खून किया, किसी को डुबा के मार दिया, जैसे आते हैं थोपड़ों में आता है महामोहनीय कर्म बांधने के इतने तरीके हैं, राइट? सो व्हेन यू रीड ऑफ देम, उसमें डुबा के मार देना, चला के मार डाला, ऑल दोस थिंग्स आर देयर. तो तब में उत्कृष्ट स्थिति 70 कोड़ी सागरोपम तक की स्थिति होती है मोहिनी कर्म की. आपको पता है उसमें से 69 कोड़ी सागरोपम तक तो मेरी आत्मा डज नॉट इवन हैव द कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड व्हाट इज धर्म. मैं धर्म देखूं कुछ नहीं. इट्स जस्ट पैदा हो रही है, जी रही है एंड देन डाइज, पैदा हो रही है, जी रही है एंड देन इट डाइज. इट कीप्स ऑन डूइंग दैट विदाउट इवन थॉट कि यार मैं कुछ करूं. जब 1 कोड़ी सागरोपम बचता है ना, तब जीव के मन में ये ख्याल आता है कि यार कुछ आत्मा का किया जाए, कुछ धर्म ढूंढा जाए और धर्म किया जाए, आत्मा का भला किया जाए. ऐसा थॉट कब आता है? 69 कोड़ी सागरोपम खत्म हो जाते हैं, तब जब 1 कोड़ी ही बचता है, तब आदमी के दिमाग में ये थॉट आता है. थॉट आने पे इसका मतलब सोचो, मोस्ट द पीपल सी हाउ दे आर लिविंग, दे कांट थिंक लाइक बियॉन्ड दिस. ओके, एवरीबडी देखो, वनस्पति, एकेंद्रिय, बेइंद्रिय, तेइंद्रिय, चौरेंद्रिय सब इसी में है. पंचेंद्रिय में भी, असंगी पंचेंद्रिय भी इसी कैटेगरी में है, युगलिक भी इसी कैटेगरी, सब कुछ लोग इसी कैटेगरी में है. जब 1 कोड़ी सागरोपम बचता है ना, और आपके मन में आता है धर्म ढूंढूं, मैं अपनी आत्मा का कुछ भला करूं, लेट मी फाइंड आउट what I should do, right? तो ढूंढने के वक्त वो बहुत ढूंढता है और एक्सपेरिमेंट्स करता है, बहुत फिगर आउट करने की कोशिश करता है, और पूरे चांसेस हैं कि वो गलत डायमेंशंस में चला जाता है, राइट? He might find a religion जिसके अंदर बलि देना is considered धर्म. He might end up finding a religion जिसके अंदर it is okay to burn things and pray to God and do things like that, right? He might end up finding a religion जो जैन धर्म के टोटली ऑपोजिट डायरेक्शन में हिंसा को ही धर्म मान रहा है. ऐसे धर्म के अंदर वो पड़ जाता है. He starts feeling अरे यही धर्म है, और वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग वाला हो जाता है, उन फीलिंग्स के अंदर वो फिर से 70 कोड़ी सागरोपम का बंद करके वापस पूरा 70 कोड़ी सागरोपम चालू करता है. राशि, यू आर अनम्यूटेड. Sorry. Okay, so again we are understanding again and again कि 70 में से 1 कोड़ी के सागरोपम में यदि मैं ढूंढना, मेरी आत्मा ढूंढती है, let me find religion, तो वो it ends up falling in the wrong path most of the time. उसमें से बहुत थोड़े ही है जो सम्यक दर्शन की स्पर्शना करते हैं. ओके, यदि जो नहीं कर पाते हैं वो फिर से 70 कोड़ी का बंद करके फिर से 70 कोड़ी सागरोपम का जीवन जीना चालू कर देते हैं. फिर उसमें से 69 कोड़ी सागरोपम तक तो उनको भान ही नहीं होता है कि मैं कुछ करूं, अपनी आत्मा का भला करूं. फिर जब 69 खत्म होने पे 1 कोड़ी बचता है, तब वो फिर से ढूंढने निकलते हैं. फिर उनको कोई गलत चीजें मिल जाती है, फिर दे एंड अप डूइंग द रॉन्ग थिंग्स, मतलब एंड अप डूइंग द रॉन्ग थिंग्स. अंडरस्टैंड? इस तरह से हमारी आत्मा कितनी ही बार कर चुकी है. यू वांट टू नो? अनंती बार, इनफाइनाइट टाइम्स हम ये कर चुके हैं. That is why we are still sitting here. That's why we are not in moksha. Please understand. We have been doing this. Don't think, अरे नहीं हम लोग को तो धर्म मिल गया ना, हमको तो महावीर स्वामी भगवान समझ में आ गए ना, हमको तो जैन धर्म में. Don't be under this self confidence, please.
right? We are still sitting here and we are not sitting in Sitshila is a proof that we were, हमको ये जो 1 कोड़ा-कोड़ी सागरोपम का हमको अपॉर्चुनिटी मिली है, we mess it up, we again going to go back to 70 कोड़ा-कोड़ी का बंद and again 69 कोड़ा-कोड़ी, we will be not even figuring out हम धर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, right? So tension build up होनी चाहिए कि यार अभी कुछ ये जो विंडो है जिसमें जब समझ में आ रहा है यार ये किसी में कुछ गलती ना हो जाए, I mean I should not do this mistake कर ली, if you इस सम्यक दर्शन की स्पर्शना नहीं की, God help you, then you are left with big thing. But if you are very great and सम्यक दर्शन की स्पर्शना कर लेते हो उसके अंदर, तो आपके पता है क्या हो जाता है, आपके सिर्फ अंतो कोड़ा कोड़ी सागरोपम संसार में रहता है. अंता कोड़ा कोड़ी मीन्स 1 करोड़ से थोड़ा लेस टाइम, मतलब 1 समय लेस, 1 कोड़ा कोड़ी मतलब 1 करोड़ into 1 करोड़ सागरोपम ही आपका संसार में रहता है. मान लो सम्यक दर्शन की स्पर्शना करके आपने कुछ बहुत ही घटिया काम किया और 70 कोड़ा कोड़ी का बंद कर भी लिया, तो भी एट सम पॉइंट आप उस धर्म करोगे और उस 70 को वापस अंतो कोड़ा कोड़ी का उस कर दोगे, मतलब उस कर्म की पूरी लता को अंता कोड़ी कोड़ी की छोटी करके आप अंता कोड़ा कोड़ी में सारे कर्म डिस्ट्रॉय करके मोक्ष चले जाओगे. ओके, इसका मतलब सम्यक दर्शन की स्पर्शना यदि कर ली तो अर्ध पुद्गल परावर्तन, सी ऑल एंड दीज आर जार्गन्स, अर्ध पुद्गल परावर्तन में आप जरूर मोक्ष में जाओगे. So you will say, what is Ardhpudgal Paravartan? I'll take 1 class to teach you Ardhpudgal Paravartan. Please understand, it's a very big thing. Okay? यूनिवर्स में हर जगह पे उत्पन्न, यदि आकाश प्रदेश में उत्पन्न होगे मरोगे ना, that is 1 पुद्गल परावर्तन. उसका half time is Ardhpudgal Paravartan, which is a lot, बहुत सारी अवसर्पणी उत्सर्पणी काल. Still, आप मोक्ष is guaranteed. So, all these things are just giving you a reason why सम्यक दर्शन की स्पर्शना करनी पड़ेगी. हमेशा मैं बोलती हूँ जब भी धर्म करो, you are doing it only for one reason, that is for you to go to moksha. Are you clear? So, which is true, but how it is a long term aim. You can't do it in this birth. So what is the short term aim? Short term का मतलब होता है मरने से पहले I need to do this before I die. And what is that? I need to get सम्यक दर्शन की स्पर्शना. Are you clear? So, मोक्ष is a long term aim, सम्यक दर्शन is a short term aim. Short term मतलब मरने से पहले मुझे I need to do सम्यक दर्शन. I need to do सम्यक दर्शन. और सम्यक दर्शन के लिए मुझे मिथ्यात्व के कर्म हटाने पड़ेंगे. We'll figure that out later, right? But start asking. जैसे मोक्ष ask, जैसे मांग के भगवान केवल ज्ञान प्राप्त करवा देना, भगवान मोक्ष चाहिए, भगवान प्लीज भगवान आई नीड टू गो टू मोक्ष, राइट? आप बोलते हो ना, लोगस्य में क्या लाइन बोलते हो, सिद्धा सिद्धि मम सिद्धि, राइट? मतलब सिद्ध भगवान मुझे सिद्ध बना दो, मतलब मुझे सिद्ध गति दे दो या सिद्ध बना दो, इस तरह से तुम बोलते हो, सिद्ध भगवान को बोलते हो. लोगस्य की लास्ट लाइन है, राइट? तो मोक्ष मांगते हो, विच इज वन थिंग, बट सम्यक दर्शन भी मांगना चालू करो, बिकॉज दिस इज अ शॉर्ट टर्म एम. These are 2 things now you have to ask, long term and short term. So now you have 2 aims in life. Moksha as a long term and Samyak Darshan is a short term. Before you die, you will die. Are you clear? मांगना चालू करो, रोज समाय करो, भगवान सम्यक दर्शन, भगवान नीड सम्यक दर्शन, भगवान I want सम्यक दर्शन. Start showing your desperation, start showing your विनय, start asking, उनकी आज्ञा लो, उनका शरण लो for that. And trust me, you can't manage it yourself. आप सम्यक दर्शन नहीं कर सकते हो अपने आप. You have to take help of Sudev, Suguru, Sudhara. इन तीनों में से किसी को भी कर सकते हो. You don't need to. It's either. जैसे मोक्ष में all 3 में से घुस सकते हो. You can do it either of it. Okay. So, is there anybody who thinks कि यार why सम्यक दर्शन? Still. See, I don't want to compete सम्यक दर्शन against ज्ञान और चारित्र, because ज्ञान अपनी जगह है, चारित्र अपनी जगह है, right? But ज्ञान मैंने कितने ही भवों में कितना भी किया हो सकता है, but सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान रह जाता है, और उपयोग में तो उसको अज्ञान के कैटेगरी में भी डाल दिया है, right?
और चारित्र को चारिताभास बोल दिया, मतलब तुमको लगता है चारित्र है, आभास हो रहा है, बट इट इज नॉट चारित्र. सो गेट डेस्परेट. ठीक है, ओके. सो नाउ आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू anecdote to make you understand कि what I am trying to tell you the importance of it. कि कहते हैं कि एक शेर था, शेर और शेरनी एक जंगल में रहते थे. This is one of my favorite stories. तो जो शेर और शेरनी थे, they were living a very peaceful life. और उस जंगल के अंदर बहुत सारे गीदड़ भी रहते थे. गीदड़ हमेशा डरे रहते थे कि यार शेर आएगा हमको खा जाएगा. तो शेर अपनी मस्ती जीते थे, जंगल के राजा हैं, राइट. गीदड़ आर ऑलवेज अफ्रेड ऑफ देम कि कभी ये मार के हमको खा जाएंगे. एक बार क्या हुआ, शेर बीमार पड़ गया. तो शेरनी ने बोला कोई बात नहीं, तुम बीमार हो, बुखार चढ़ा हुआ है तुमको, तुम लेटे रहो, मैं जाके खाना लेके आती हूँ. तो शी वेंट आउट टू गेट फूड. तो शेर सोया पड़ा है, बिकॉज बुखार में क्या करता है आदमी, सोया पड़ा है. तो शेर सोया पड़ा है. बहुत देर तक गीदड़ देखता है कि ये शेर पेड़ के नीचे सोया पड़ा, हिल ही नहीं रहा है. तो उसको वो तो बड़ा खुश हो जाता है, कहता है लगता है शेर मर गया, यार आज तो मेरी लॉटरी निकल गई, आज तो मैं शेर को खाऊंगा. वो ये सोचता है. और गीदड़ उसके पास, मतलब ऐसे तो गीदड़ उससे डरा रहता था कि यार ये मार डालेगा मुझे, तो हमेशा उसके पास नहीं आते थे, उसको देख के भाग जाते थे. पर आज उसकी हिम्मत हुई थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ने. शेर उसको देख रहा है कि यार आज गीदड़ बड़ी अपनी बहादुरी दिखा रहा है, एक स्टेप आगे लेके आंखें थोड़ी सी खोल के देख रहा है ये बात. पर कहता है क्या करूं मैं तो बीमार हूँ, बुखार चढ़ा हुआ है, मैं तो कुछ कर नहीं सकता, मैं जाके उसको भगा नहीं सकता. तो जब गीदड़ एक स्टेप और आगे लेता है खुश होके कि यार लेट मी गो हियर बिकॉज ही इज डाइड. फिर गीदड़ सोचता है व्हाट इफ ही इज अलाइव, यदि वो जिंदा हुआ ना तो मुझे मार डालेगा. तो डरता भी है, पर डर भी रहा है और एक एक स्टेप धीरे धीरे आगे भी ले रहा है. नहीं लगता है वो मर गया, लेट मी गो आगे. डर भी रहा है पर एक स्टेप आगे ले रहा है. और ये शेर सब कुछ देख रहा है कि यार ये तो इतनी पास आ गया, मैं क्या करूं, मुझे बुखार चढ़ा हुआ है, मैं बीमार हूं, मैं उसको मतलब भगा भी नहीं सकता, मैं दहाड़ भी नहीं सकता, मैं दहाड़ू कैसे, मैं बीमार हूं. वो इतनी पास आ चुका होता है गीदड़. उतने में शेरनी आती है और देखती है कि यार गीदड़ इतनी पास आ गया, एक चिल्लाती है, एक दहाड़ लगाती है, तो गीदड़ भाग जाता है. वो आके शेर को बोलती है क्या हुआ, गीदड़ इतनी पास हो गया, तूने उसको भगाया क्यों नहीं, he could have hurt you. शेर कहता है क्या करूं मैं बीमार हूं, मुझे बुखार है, मैं कैसे उसको भगाऊं, मैं दहाड़ ही नहीं सकता, I don't have strength. शेरनी उसको बोलती है you are forgetting who you are, you are a शेर. तुमने अपनी पूंछ हिला दी होती, सिर्फ पूंछ हिला दी होती, सिर्फ ये बता दिया होता कि मैं जिंदा हूं. You just have to give proof of life that I am alive. तो गीदड़ भाग लिया होता, वो तेरे पास ही नहीं आता, right? You didn't have to get up and roar and run behind him to make him go away. All you had to do was give proof of life. और गीदड़ भाग चुका होता. ये किसने उसको बोला, शेरनी ने उसको बोला. Are you clear? आपको पता है आपकी आत्मा भी शेर है, अभी कर्मों से दबी हुई है बेचारी, लिटरली दबी हुई है. The karms are totally camouflaged on your body, totally. तो आत्मा के गुण almost like a गीदड़ की तरह, शेर की तरह बैठे हुए. I'm sick, I can't do anything, मैं मोक्ष नहीं जा सकती, I don't know whether I can, right? You're not even sure, can I go to moksha? How do I go to moksha? I don't know whether I can go to moksha, right? अरे तुम ही मोक्ष में जाओगे, पुद्गल और दूसरे द्रव्य मोक्ष नहीं जाएंगे, तुम ही जाओगे, right? But you need to give proof of life. You need to prove, to tell yourself, right, कि तुम आत्मा हो. And this सम्यक दर्शन की स्पर्शना, सम्यक दर्शन जब प्रकट होता है, that is the first proof of life that yes, I am an atma, I am great, I am capable of going to moksha. Okay, so I am telling you, तुम शेर हो, तुम्हारी आत्मा शेर है, right? Only you guys can go to moksha. Only आत्मा can go to moksha. Only जीव can go to moksha. पुद्गल दूसरे द्रव्य नहीं चाहते हैं. Only we can go to moksha. क्यों बैठे हुए हो इधर? Because you are not showing आत्मा as alive. आत्मा को जिंदा करो, आत्मा को इम्पोर्टेंस दो, आत्मा का सम्यक दर्शन गुण प्रकट करो,
and see how the karam runs away. सम्यक दर्शन जैसे ही निकलता है, एक बार भी प्रकट होता है, उसके बाद आपका संसार में अद्भुत परावर्तन काल ही रहता है और आप मोक्ष चले जाते हो मैक्सिमम। अंत कोड़ा कोड़ी से ज्यादा का बंध नहीं होता है, आप मोक्ष चले जाते हो, गारंटी। सो व्हाट गारंटीज मोक्ष इज सम्यक दर्शन। ओके, सो नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड दैट यू नीड टू गेट सम्यक दर्शन। ओके ओके, सो we have got the importance. Is there anybody who does not know the importance of सम्यक दर्शन? आपको तब पता है जब किसी की डेथ होती है ना, तो वो यदि कुछ बोलना चाहता है ना, तो वो बेस्ट चीज आपको देके जाना चाहता है। महावीर स्वामी भगवान को पता था कि अभी मेरा आयुष कर्म खत्म हो गया है, मैं सिद्ध शिला में चला जाऊंगा, सो आई एम गोइंग अवे, राइट? सो लेट मी गिव द बेस्ट थिंग्स टू यू। उन्होंने जाने से पहले उत्तराध्यान सूत्र मतलब उन्होंने जो भी बोला, इट्स रिकॉर्डेड इन अ पार्ट ऑफ उत्तराध्यान सूत्र। यू ऑल नो दैट। वो ऑलमोस्ट दिवाली के आसपास के डेज में हमारा सास भी पढ़ते हैं, इसकी वाचनी होती है, राइट? उत्तराध्यान सूत्र, दैट इज द लास्ट सर्मन बाय महावीर स्वामी भगवान। आपको पता है यदि आपको सम्यक्त्व में आगे जाना है तो आपको कौन सा आगम पढ़ना चाहिए? उत्तराध्यान सूत्र। इट हैज एवरीथिंग टू डू अबाउट सम्यक, मतलब ये आगम इज ऑल अबाउट सम्यक दर्शन। इसका एक चैप्टर है बाय द नेम ऑफ सम्यक्त्व पराक्रम, मतलब सम्यक्त्व में मैं आगे कैसे बढ़ूं। दैट चैप्टर इज लाइक अ गोल्ड माइन, मतलब यदि आपके पास हीरे मोती आपको चाहिए ना, यू शुड गो टू दैट चैप्टर। आई मीन एक से एक हीरे मोती मिलेंगे एंड यू विल योर लाइफ विल ऑल्टर, राइट? राइट डाउन द आगम्स नेम, उत्तराध्यान सूत्र, गेट इट। मैंने आपको बताया था ना, ज्ञान के बारे में आपको सीखना है तो नंदी सूत्र आपको पढ़ना चाहिए, बट यदि आपको सम्यक दर्शन टॉपिक के बारे में सीखना है तो यू नीड द आगम बाय द नेम ऑफ उत्तराध्यान सूत्र। उसको 4 मूल सूत्र के अंदर भी बोला जाता है। ये ले आओ, द होल बुक इज ऑन सम्यक दर्शन। इसके अंदर आई टोल्ड यू ना, एक से एक हीरे मोती है, बट दिस चैप्टर ऑन सम्यक पराक्रम, ओ गॉड, इट इज लाइक mind shattering, that kind of information, that kind of ज्ञान which महावीर स्वामी भगवान has given। ये भगवान महावीर स्वामी भगवान की अंतिम देशना बोली जाती है, आखिरी उनके मुंह से जो चीजें निकली है, that is there। okay okay, so I have just explained in a lot of ways what is सम्यक दर्शन की स्पर्शना क्यों चाहिए, सम्यक दर्शन क्यों चाहिए, what is the need। now I'm going to come back to a very small sentence of what why do we need it। बोल तो दिया, उसमें एक मेजर इंपॉर्टेंट मैं आपको बताती हूँ, उसका डेफिनेशन बताती हूँ सम्यक दर्शन का। सम्यक का मतलब होता है सही, और दर्शन मतलब देखना। तो आप बोलोगे कि मैं तो सही देख रही हूँ बिकॉज मतलब चश्मा भी है तो मैं चश्मे के साथ भी सही देख रही हूँ, बिना चश्मे के भी देख रही हूँ। तो ये वो वाला देखना नहीं है। जो देखना वाला मतलब जो द सीन वाला जो देखना है इज अ पार्ट ऑफ द सेकंड कर्म, तो दर्शनावण्य कर्म। सम्यक दर्शन वाला देखना इज मोर टू डू विद परसेप्शन एंड एटीट्यूड। दैट मीन्स देखने का सही तरीका इज नोन एज सम्यक, मतलब सम्यक दर्शन। सो लिटरल ट्रांसलेशन ऑफ सम्यक दर्शन इज देखने का सही तरीका। एंड देखना मतलब एटीट्यूड एंड परसेप्शन, एक सिचुएशन को कैसे देखा जाता है, एनी गिवन सिचुएशन को कैसे देखा जाता है राइट तरीके से, इज द एटीट्यूड, परसेप्शन, अ सिनेरियो, अ सिचुएशन इज नोन एज सम्यक दर्शन। तो स्वाति, यू हैड आस्क्ड that जब ये होता है तो how do I come to know, right? I will tell you the characteristics much later, but तुम देखोगी when I keep on talking you will understand certain dimensions। कि सम्यक दर्शन यदि आएगा ना तो मैं हर चीज को सही तरीके से देख रही हूँ, हर चीजों को, एवरीथिंग। इट्स नॉट कि मैं एक चीज में सही तरीके से देख रही हूँ, मैं सिर्फ धर्म को सही तरीके से देख रही हूँ, मैं खाने को बनाना सही तरीके से देख रही हूँ, मैं बच्चे पालना, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, सोसाइटी में कैसे फंक्शन करना हो, एनीथिंग
टेक द टॉपिक ऑन प्लैनेट अर्थ एंड मैं उस चीज को सही तरीके से देख रही हूं। इस लेवल का कमांड आ जाता है जब सम्यक दर्शन की स्पर्शना होती है। तो स्वाति, योर क्वेश्चन कि कैसा पता लगे मेरे को सम्यक दर्शन हो? Yes. All of a sudden, if you're not thinking great, right? All of a sudden, your brain is thinking dramatically opposite to what you've been thinking. Opposite. And it still gives you happiness, right? It still gives you the best and best happiness. That might be the pocket of Samyak Darshan. Because Samyak Darshan के वक्त देखने का पूरा एटीट्यूड चेंज हो जाता है, पूरा एटीट्यूड इतना सही हो जाता है। आप बोलोगे कि बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, वो बिल्कुल सही तरीके से देखते हैं, उनमें कशाई नहीं होते। लेट अस टेक मदर टेरेसा फॉर एग्जांपल, ओके, वंडरफुल सोल। आई मीन, आई एम श्योर कि मैं भी किसी ऐसे बीमार आदमी को, मेरे को भी हाथों से उठाने में 2 बार होगा, मैं बोलूंगा यार ग्लोव्स पहन लूं यार, मैं कंटामिनेट ना हो जाऊं, यू नो, मेरे को हलकत भी मचेगी इफ समबडी हैज अ मेडिकल प्रॉब्लम व्हिच इज रियली बैड, राइट? मैं शायद नहीं भी कर पाऊं इतनी दुख दर्दियों की सेवा, but she did a fantastic job of taking care of the needy and in God's hand. I mean, he used to use these words. My hands are basically the extension of God's hand. I mean, all those wonderful theories which she used to say, right? तो क्या वो सही तरीके से देख रही है? मैं हर चीज में हम कर रहे हैं. We have invented rockets. How if we have put up a person on landed on moon, or you know, we have been to Mars or whatever, we have been to rockets and putting satellites in outer space, right? Without सही तरीके की कैलकुलेशन, without सही तरीके का ज्ञान, we would not have been able to put satellite in outer space, right? But we have been able to do that. Does that mean that is Samyak Darshan? The thing is, it's not the ज्ञान का विषय. It is the attitude at which you look at things. Okay? So, in one of my class, I will take कि कैसे हर चीज को देखने का तरीका भगवान ने बड़े अलग तरीके से बोला है. I will take a class on Samvar and Nirjara when it comes. I will do that. But the problem is, यदि आपके अंदर सम्यक दर्शन हो गया, अपने अंदर हो गया ना, तो I don't have to tell you. भगवान also does not have to tell you. You will know what exactly उस चीज को कैसे देखा जाता है, right? So even though I will be teaching you, this is how you look at it, this is how you look at it, right? भगवान ने ऐसा बोला देखने को इस सिचुएशन में, but I will still push you that you have to reach the level of सम्यक दर्शन, क्योंकि जिस दिन आप पहुंच जाओगे ना सम्यक दर्शन पे, उस दिन आपको दुनिया में हर चीज सब परफेक्ट दिखाई देगी. Everything will be perfect. Okay? Yes, got it. It's a wonderful feeling. Everything would look perfect. So it is not for me to give Samyak Darshan or for Mahavir Swami Bhagwan to give you Samyak Darshan. Nobody can give you. Maharaj Sahib भी आपको नहीं दे सकते. मतलब they cannot give you like, okay, from now, वो ज्ञान दे सकते हैं, but they can't hand it over to you like that, right? आपको खुद मेहनत करनी होगी and reach Samyak Darshan state on your own. Okay? So we are going to work on how do you reach there. To reach there, first you have to take 3 लोगों का शरणा, सुदेव, सुगुरु, सुधर्म. इन तीनों में से किसी का भी शरणा लो, राइट? कभी मैं सुदेव का शरणा लेती हूँ, तो कभी सुगुरु का शरणा लेती हूँ, कभी सुधर्म का भी शरणा लेती हूँ. इट कैन बी आइदर, कभी इसका ले लो, कभी इसका ले लो, कभी 5 मिनट इसका ले लो, आधा घंटा इसका ले लो, 2 घंटे इसका ले लो. इट कैन बी एनीथिंग, राइट? बट आप इन तीनों के बिना सम्यक दर्शन की स्पर्शना नहीं कर पाओगे. पहले ये भी समझो. इसके लिए एडवांस लेवल की अनुप्रेक्षा की जरूरत है. मतलब यू हैव टू डू चिंतन. On what? On आगम का ज्ञान, भगवान के ज्ञान के ऊपर आपको चिंतन करना है. इसका मतलब आपके पास ज्ञान होना जरूरी है. इसका मतलब आपके पास आपको ज्ञान लेना पड़ेगा, चाहे वो आगम रूप से लो, चाहे थोपड़े रूप से लो, किसी न चीज का ज्ञान लेना जरूर पड़ेगा. ठीक है? Third thing which you have to do is do a lot of विनय, exemplary विनय, जितना कर सको, जितना. Again, वो भी सुदेव, सुगुरु, सुधर्म का. And third, very important factor, another very important factor, breaking factor is सुपात्र दान की भावना. Very important factor. जितनों को भी सम्यक दर्शन की स्पर्शना हुई है,
ये देखा गया है, आप स्टोरीज पढ़ना, कि उस आदमी ने, वो पहले बिल्कुल कुछ नहीं था, मतलब ही वाज जस्ट लाइक सम्यक दर्शन नहीं हुआ था, उसने किसी साधु को या किसी भी मतलब नकार मंत्र किसी भी पद को या जैन धर्म को हेल्प की। जैसे नायसार, महावीर स्वामी भगवान की स्टोरी में आता है कि नायसार वॉज अ वुड कटर, वो लकड़ी काटने मतलब वो घर बनाता था, महल बनाना था उसको राजा का, तो वो गया हुआ था जंगल में लकड़ी काटने। तो हर आदमी अपना खाना लेके जाता है, लाइक योर हस्बैंड्स डू टेक देयर फूड फ्रॉम द घर से, तो वो लेके गया हुआ था। वहां पे एक साधु जो था, ही वाज इन अ वेरी बैड शेप, मतलब वो रास्ता भूल गया था। तो उस साधु को उसने देखा, बड़ा खुश हुआ, उसने अपना खाना दिया, जिसकी वजह से उस साधु को, मतलब जैसे जान में जान आती है ना, मतलब ऑलमोस्ट खाना पीना नहीं मिले तो कैसी हालत हो जाती है, तो उस जान मतलब द साधु कुड सर्वाइव इट। एंड देन वो रास्ता भी भूल गया था, तो उसने उसको नायसार ने उसको रास्ता बताया शहर तक जाने का, काफी रास्ते तक उसको छोड़ के भी आया, जिसकी वजह से जाने के वक्त उस साधु ने बोला कि तुमने मुझे रास्ता बताया है और खाना पीना दिया है, मैं भी तुमको मोक्ष जाने का रास्ता बताता हूँ। इस तरह से उसको कुछ सिखाया। उसकी वजह से इतने ऊपर से कर्म हटे कि नायसार को उस वक्त सम्यक दर्शन की स्पर्शना हुई पहली बार। ओके, एंड लेटर ऑन वो 29 मुख्य भाव करके ही गॉट केवल ज्ञान, मतलब महावीर स्वामी भगवान का जी सिद्ध भगवत बना। सो आपको भी सुपात्र दान की भावना देनी चाहिए। उत्कृष्ट रसायन नहीं आए तो कोई बात नहीं, इट इज अ मैटर ऑफ टाइम। रोज कोशिश करो आधा घंटा सुपात्र दान की भावना पाने का। डू नॉट मल्टीटास्क व्हेन यू आर कुकिंग, आफ्टर यू हैव फिनिश्ड कुकिंग सिट, जैसे लोग बैठ के समायक करते हैं ना, पचकान ले लो कि भैया मैं आधा घंटा सुपात्र दान की भावना पाऊंगी, आई मीन आई विल डू। तो ये पचकान लेके करो तो होगा। यदि बोलोगे ना नहीं 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 मैं टीवी देखते हुए कर लूंगा, मोबाइल करते हुए कर लूंगा, मैं खाना बच्चे को खाना बच्चे का रूप बनाते हुए और बच्चे को खाना देते हुए कर लूंगा, या मैं टिफिन पैक करते हुए कर लूंगा, मल्टीटास्किंग में सुपात्र दान की भावना नहीं होती है। आधा घंटा बैठ के सुपात्र दान की भावना पाओ। चंदन बाला was sitting on the doorstep, मतलब जब वो 3 दिन की भूखी थी, right, when she was a slave, वो सुपात्र दान की भावना बैठ के भा रही थी, and she has been doing it all throughout ever. Okay, so आप रोज आधा घंटा सम्यक सुपात्र दान की भावना भाव। इट डजंट मैटर आपके वहां पे, आप बोलोगे यार आई लिव इन अ प्लेस यहाँ पे तो कोई मारासा ही नहीं है, मतलब मारासास डोंट कम हियर, यू नो, लाइक doesn't matter. It's not your job to give food to Marasa. It's not your job to go and catch a Marasa and get him to your house. It's not your job. Your job finishes सुपात्र दान की भावना भागने के वक्त your job finishes. When the आपके कर्म हटेंगे, Marasa आ जाएंगे, you just have to give them. Okay? So, yeah. आंटी, सुपात्र दान की भावना मतलब जब मरासा के गोचरी का समय होता है उसी टाइम भानी चाहिए या कभी भी हम लोग भा सकते हैं, like 11 to 30? Yeah. See, I leave it on you because Agams are saying that, जैसे I'll give you a story, महावीर स्वामी भगवान को ना तब तक केवल ज्ञान नहीं हुआ था, पर वो साधना, मतलब वो साधु बन चुके थे, पर उनको केवल ज्ञान नहीं हुआ था। तो एक आदमी था, उसने महावीर स्वामी भगवान की साधना देखी, वो श्रावक था, तो साधना देख के उसको समझ में आ गया था कि हो ना हो ये 24 नंबर के तीर्थंकर बनेंगे। इस लेवल की साधना एक तीर्थंकर लेवल का पर्सन ओनली डज इट। ओके, तो बड़ा खुश हुआ, कहता है ये जो भी, मतलब ही डिडंट नो हु ही वाज, तो कहता है ये पर्सन कभी ना कभी तो तपस्या पारेंगे, जब पारे तो मेरे घर आए और मेरे घर आके गोचरी ले। सो ही वाज प्रीटी, और ही यूज्ड टू थिंक अबाउट इट 24/7 इवन इन द नाइट, राइट। 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, यू नो। महावीर स्वामी भगवान पारना रोज नहीं करते थे। देयर वर टाइम्स व्हेन ही यूज्ड टू हैव, यू नो, गैप्स इन हिज, मतलब व्रत कर रहे हैं, एंड द डे ही वुड पारो, ही वुड गो फॉर खाना, एंड देन अगेन ही वुड टेक अ पचकान फॉर गॉड नोज हाउ मच टाइम, कभी 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। सो ही वुड कीप ऑन सेइंग कि कभी ना कभी तो ये पारना करेंगे ना, जब भी पारना करें मेरे घर आए और मेरे घर से खाना है। सो ही वाज डूइंग सुपात्र दान की भावना 24/7। आर यू अंडरस्टैंडिंग? हाँ, you don't need a time clause कि नहीं ये this time is, you need to do it. ये basically आप विनय कर रहे हो साधु के प्रति, you are falling, it's like a kind of a love and respect towards a साधु। जैसे आप अपने बच्चों के लिए बॉदर होते होगे, यार
मेरे बच्चे ने खाना नहीं खाया, राइट? सो बिकॉज यू लव योर चाइल्ड, राइट? आर यू बॉदर्ड के पड़ोसी के बच्चे ने खाया कि नहीं खाया? आर यू बॉदर्ड? यू डोंट इवन नो, राइट? सो एग्जैक्टली दैट वे. सो this is exactly what we are doing. We are least bothered महाराजा को खाना मिला नहीं मिला, मेरे घर में धोवन पानी है नहीं है. We are least bothered because we don't love Maharasas. This is the prime factor. We have no respect at all for them. We just say Namo Lohi Sab Sahunan. Exactly, we have no Namo ki feet towards them, to tell you very frankly, right? I'm just saying, push yourself for Namo ki feet towards them. नहीं भी आएगी ना, धीरे धीरे आ जाएगी. Find out what a sadhu does. Why is that the sadhu great? Why is he a great person? Right? Think about that about the sadhu. धीरे धीरे रसायन आएगा और रसायन से बहुत कर्म हटके तुमको सम्यक दर्शन की स्पर्शना होगी. So do that. इनफैक्ट मैं तो बोलती हूँ कि आपने बोला ना कि आप लोगों से मेरे को क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, एक मोक्ष की अभिलाषा. प्लीज, इफ आप लोगों में नहीं है, किसी में राइट उत्पन्न नहीं हो रही है, तो टेल मी, अनम्यूट करके बोलो, यार आई डोंट नो व्हाई बट आई कांट, आई डोंट नो व्हाई बट दिस इज द प्रॉब्लम इन माय सुपात्रदान. गिव मी दैट, लेट मी आर्ग्यू ऑन, लेट मी गिव यू अ पर्सपेक्टिव ऑन दैट. आई नीड मोक्ष की अभिलाषा सबके मन में, राइट? उत्कृष्ट है. और आज के बाद सम्यक दर्शन की भैया सम्यक दर्शन भी मुझे हो जाए, ये भी दोनों डिमांड, मतलब लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म एम्स आपके मन में आ जाए. सेकेंड है समाइक चालू हो जानी चाहिए, मिनिमम 1 समाइक जस्ट टू कीप अ विंडो ओपन, राइट? इतना हो जाए कि भैया आप जो सीख रहे हो वो भी जीरो ना हो जाए. थर्ड इज सुपात्रदान की भावना, मिनिमम हाफ एन आवर, डू दिस मच, स्टार्टेड, राइट? कुछ नहीं ना तो उनकी क्वालिटी सीखो कि वो आदमी साधु जो पर्सन है उसकी क्या ग्रेटनेस है. 5 महाव्रत को अप्रिशिएट करो, यार क्या मैं कर सकता हूँ 5 महाव्रत ले सकता हूँ, राइट? I mean, is it easy? Or movie 24/7. I might do what I do in Samaik, they are doing 24/7, right? मैं तो समाइक करके यार मेरी बस हो जाती है, यार बहुत हो गया यार, आज 4 समाइक हो गया, I can't do further, right? They're doing it 24/7. They can't even come out of it, right? There are days when मेरी से इतनी बस हो जाती है, I'm like, let's party, man. Today I'm going to party, right? They don't have that option. That great those people are. They are 24/7 going to Moksha Marg. I go only sometime. The rest of the time I am not going to Moksha Marg. In fact, I am going in the opposite direction. So ऐसे आदमी को अप्रिशिएट करो और वो मेरे घर खाना खाने आए, इसकी भावना पाओ. इसको बोलते हैं सुपात्रदान की भावना. ओके. और यदि एक और चीज है, यदि तुम अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सको, वो है चतुर्विधि संघ में कुछ कंट्रीब्यूशन कर सको तो प्लीज करना चालू करो. चतुर्विधि संघ वो होता है जिसको साधु साध्वी श्रावक श्राविका बोलते हैं, राइट? इन चारों को किसी भी तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हो, राइट? इट नीड नॉट बी विद फूड, इट नीड नॉट बी समथिंग एनीवे. चाहे वो ये सोचो कि मुझे तीर्थ को मैं कैसे कंट्रीब्यूट करूं. तीर्थ, वी आर ऑलवेज रेसिपिएंट. तीर्थ हमारी सेवा करे, पास्टर से महाराजा आ जाए, हमको क्या फायदा होगा, हम व्याख्यान सुने, वी आर ऑलवेज थिंकिंग कि हमको क्या फायदा होगा. स्टार्ट थिंकिंग हाउ आई कैन कंट्रीब्यूट टू द तीर्थ, ओके? क्योंकि जब हम तीर्थ का व्यावच करने लग जाते हैं, इट्स अ डिफरेंट लेवल ऑफ नर्चर. सो मैंने आपको 3-4 ऐसी चीजें बता दी है, राइट? मोक्ष की अभिलाषा इन सम्यक दर्शन की अभिलाषा. Second is 1 samaik minimum. It can go to 2 also, but minimum 1 samaik. Third is half an hour of supatradan ki bhavna, right? And fourth, what was the fourth last one which I just said? I just said now. सम्यक दर्शन की स्पर्शना. चतुर्विधि संघ की व्यावच मैं कैसे कर सकती हूँ? हाउ कैन आई कंट्रीब्यूट टू द भगवान के चतुर्विधि संघ में मैं कैसे कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ, राइट? इट कैन बी इन एनी वे. आप में जो भी स्किल्स हैं, यदि मेरे को पढ़ाने के स्किल्स है और मुझे जयंत्र माता आई विल टीच, पर मेरे पास यदि वो स्किल्स नहीं है, नेटवर्किंग का स्किल्स है, लेट अस नेटवर्क. वी नीड अ लॉट ऑफ नेटवर्किंग. जोड़ो, लोगों को जोड़ो, नेक्स्ट जनरेशन को जोड़ो धर्म से. यूज नेटवर्किंग स्किल्स. कई लोग बोलते हैं हम तो फ्रेंड्स ऐसे बनाते हैं. आई हैव सो मेनी फ्रेंड्स. ओ ग्रेट, सुपर ग्रेट. यू हैव दैट स्किल, प्लीज यूज दैट फॉर चतुर्विधि संघ. बनाओ ना फ्रेंड्स, उसको लेके आओ, उस फ्रेंड को मतलब धर्म के मोड में लेके आओ, सबको उठा के बनाओ. देयर आर सम पीपल हु हैव दीस स्किल्स.
तो ये स्किल्स का क्या फायदा यदि संसार में वो स्किल्स यूज हो रही है लेकिन धर्म में यूज नहीं हो रही है, राइट? इट कुड बी एनीथिंग। मैं तो बोलती हूँ आपको खाना बनाना आता है ना, तो सिखा दो नेक्स्ट जनरेशन को कैसे बिना आलू प्याज लहसुन के भी टेस्टी खाना बनता है। इवन दैट दिस थॉट कि यार मैं कैसे टेस्टी खाना बनाना सिखा सकती हूँ विदाउट प्याज लहसुन एंड थिंग्स लाइक दैट, it will be a contribution to the death, right? Anything, name it and you can use your skills in चतुर्विधि संघ। नहीं होता है आपके पास पैसा है, पैसे से चतुर्विधि संघ की सेवा करो, but you better start doing that, thinking how can I start using that, okay? Don't be always a receiver, कभी देना भी सीखो, चतुर्विधि संघ को देना। एक क्वेश्चन है मेरा, या कि सुपात्र दान में सिर्फ साधु साध्विक को वहराना ही आता है कि और भी कुछ आता है? सुपात्र दान के अंदर सिर्फ खाना और पानी नहीं आता है, मेडिसिन आ सकती है। वो मेरे घर साधु साध्वी को वहरा नहीं आता है। सुपात्र दान यहाँ पे मैं साधु साध्वी के लिए बोल रही हूँ, और यदि वयावत यदि मैं बोल रही हूँ तो वो स्वधर्मी की भी हो सकती है, बाकी बहुतों की हो सकती है। सो आई एम नॉट टेलिंग यू एक्सपेक्टिंग दैट। आई वांट मैसिव निर्जरा, कि सम्यक दर्शन के लिए बहुत मैसिव निर्जरा की जरूरत है। तो मैं छोटी मोटी चीजें नहीं मांग रही हूँ, मैं बहुत भारी भारी चीजें मांग रही हूँ, राइट? और भारी मांगने के लिए मैं साधु की वयावच मांग रही हूँ। श्रावक की निर्जरा भी बहुत बड़ी चीज है, मैं मना नहीं कर रही हूँ, बट मैं यदि मेरा टारगेट सम्यक दर्शन है, सम्यक दर्शन इफेक्ट, सम्यक दर्शन इज अ वेरी बिग टारगेट। यू डोंट रियलाइज मोक्ष इज अ वेरी बिग, आई मीन जैसे बोलते हैं ना कि हाई जंप के अंदर भी द बार इज टू हाई, अंडरस्टूड? सो मोक्ष इज अ वेरी हाई, आई हैव रेज्ड द बार रियली अ लॉट। सम्यक दर्शन की स्पर्शना हो जाए, आई एम रेजिंग द बार टू हाई। सम्यक दर्शन इज अ वेरी रेयर फिनोमेना, बहुत विरलों को मिलता है। भगवान बोलते हैं जब मैं था तब लोगों को केवल ज्ञान हो रहा था, उसी लेवल पे आज यदि लोगों को सम्यक दर्शन होता है तो समझ लो उस जमाने का केवल ज्ञान हो गया। इट इज दैट रेयर, सबको नहीं होता है। सो यदि मैं चाहती हूँ कि आप सबको सम्यक दर्शन की स्पर्शना हो, उसके लिए आपको मैसिव कर्मों की निर्जरा, थोड़े कर्म हटा के नहीं कर सकते, काम नहीं चलेगा। एक समय से आप नहीं सम्यक दर्शन की स्पर्शना विल नॉट रीच इट। You need like you know there are certain एक चीज होती है जिसमें हथौड़ा चाहिए होता है, like you know if you want to blast a mine, छोटे बॉम्ब्स भी होते हैं और बड़े बड़े बॉम्ब्स भी होते हैं। तो I am asking for big bombs, मतलब बड़े बड़े बॉम्ब्स लगा के पूरा कर्मों की निर्जरा करनी है। So one samayik to contemplate, मतलब जिसमें आप सोचोगे कि यार what is भगवान saying? So I want one samayik there. The other two are for removal of karam, and I've given you very big things, सुपात्र दान की भावना एंड चतुर्विधि संघ की सेवा। ये दोनों बहुत मैसिव निर्जरा ये दोनों एक्टिविटीज मैसिव निर्जरा करता है, राइट? सी चतुर्विधि संघ की सेवा करना अपॉर्चुनिटी हर बार नहीं मिलती है, पर जब मिले तो ग्रैब ऑन टू इट। आई मीन डू नॉट लेट इट गो, grab, I mean it is, I mean you think of, तुम ये मत सोचो यार मैं तो कितना काम कर रहा हूँ, ये सोचो ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी नहीं, कोई और ले जाएगा ये अपॉर्चुनिटी छीन के तुमसे, ठीक है? तो कर लो, पर वो हर बार नहीं मिलती है। पर सुपात्र दान की भावना तो आधा घंटा भालो, हो सके तो पचकान ले लो अभी, कि अगले हफ्ते में रोज आधा घंटा सुपात्र दान की भावना भाऊंगा। जैसे मैं बैठ के समय, इफ यू डू फॉर 48 मिनट्स, आप आधा घंटा सुपात्र दान की भावना भाव, इतना रसायन आएगा, इतना रसायन आएगा, आई कांट टेल यू, करके देखो। आई एम आस्किंग फॉर बिग निर्जरा। आसिमा जी, यस, सामायिक में सुपात्र दान की भावना भा सकते हैं, बट आई वांट यू टू सिट लिटरली लुक एट। चंदन बाला का कभी फोटो देखा है अपने दरवाजे के बाहर, मतलब ऑलमोस्ट मिडिल में बैठी हुई है, एंड शी इज वेटिंग फॉर समबडी टू कम एंड यू सी अ महावीर स्वामी भगवान को वो दे रही है, कभी वो फोटो देखा है? आई वांट यू देयर, आई वांट यू देयर, think of yourself there, okay? So you are saying multitasking, I'm not saying you can't do, you can do supatra dan ki bhavna in samay, I'm not denying that, I'm saying karo na yaar, बैठ के supatra dan की भावना, do it as an activity, do it as a जैसे समायिक लोग बैठ के करते हैं, जैसे लोग प्रतिक्रमण बैठ के करते हैं, यार आज प्रतिक्रमण करना है, राइट? लोग ऐसे करते हैं, तो आप भी इसको ऐसे मत करो, सुपात्र दान की भावना कर लेंगे, ऐसा करने में नहीं होगा। बैठ के करो आधा घंटा,
ओके अब नहीं कर पाए और सामायिक में फिट करनी है तो करो बट आई एम सेइंग सिट पॉजिटिवली विद दरवाजे के पास कि कोई मारासा मेरे घर पे आए एंड देन सी थिंग बिकॉज देन यू विल बी ओनली थिंकिंग ऑफ मारासास, ओनली थिंकिंग ऑफ हाउ ग्रेट दे आर एंड व्हाई दे शुड कम टू योर हाउस एंड व्हाई दे शुड ईट रादर देन यू शुड ईट योर फूड, राइट? मैं 2 रोटी खाती हूँ, क्यों 2 रोटी मेरे पेट में जाने के बदले साधु के पेट में जानी चाहिए, राइट? Why are they greater than me, right? इस सब का चिंतन चालू करो, बट सुपात्रदान की भावना चालू करो. So I have given you 2 atom bombs, right? One is चतुर्वेदी संघ की सेवा, right? यदि कर सको तो जितना भी लगाओ. मैं बताती हूँ ना, कोई हर तरीके से हेल्प कर सकते हो, पर चतुर्वेदी संघ की सेवा करो. सोचो संघ को कैसे, देखो पहली बात ये समझो, चतुर्वेदी संघ महावीर स्वामी भगवान का है, ये वाला हमारे यहाँ पे, ओके? उनकी पुण्यवाणी से 21,000 साल तक चलेगा, ओके? आप जब उसको कंट्रीब्यूट करते हो ना, सो बेसिकली आप निर्जरा कर रहे हो, अपना फायदा कर रहे हो. इट्स एन अपॉर्चुनिटी गिवन टू यू. नहीं करोगे तो भी जिनशासन तो चलता जाएगा. जिसको फायदा होना है उसको तो फायदा मिल ही जाएगा सम वे और द अदर, बट कोशिश करो कि आपको फायदा हो जाए, ठीक है? उससे आप निर्जरा कर लो. मैं यहाँ पे आपको निर्जरा पे इसलिए कॉन्सेंट्रेट कर रही हूँ वर्ड्स पे कि सम्यक दर्शन के लिए यू नीड एटम बॉम्ब लेवल थिंग्स टू बी इम्प्लांटेड इन योर कर्म, और कर्म ब्लास्ट होके हटाए, क्योंकि मिथ्यात्व को हटाना इज नॉट एन इजी जॉब. यू नीड बिग एटम बॉम्ब्स एंड दीज 2 आर एटम बॉम्ब्स. चतुर्वेदी संघ की सेवा, सुपात्रदान की भावना, ओके? दीज 2 डू दैट. टू कंटेम्पलेट मतलब चिंतन करने के लिए एक सामायिक रखो जिसके अंदर आगम पढ़ने का रखो. जैसे सम्यक दर्शन आपको चाहिए, उत्तराध्यान सूत्र पढ़ो, रीड दैट चैप्टर सम्यक पराक्रम. आई मीन इट्स माइंड बॉगलिंग. आई मीन मैं तो मुझे चैप्टर पढ़ रही थी ना, आई वाज लाइक वाओ मैन, व्हाट काइंड ऑफ ज्ञान यू आर गिविंग. आई हैव नेवर हर्ड दिस लेवल ऑफ डायमेंशंस. आई मीन वाओ. मैं 1 साल तक ऐसे करती थी, वो चैप्टर में से कोई भी एक मतलब मोक्ष मतलब पराक्रम के बहुत सारे गोल हैं, ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो. मैं एक को पिक करती थी और पूरा दिन वही करती रहती थी. लाइक इफ टुडे वंदना करना है तो पूरा दिन मैं वंदना ही कर रही होती थी. इवन इफ आई एम वॉकिंग, आई एम डूइंग वंदना इन माय हेड, राइट? वंदना टू दिस, वंदना टू कभी सिद्ध को, अरिहंत को, साधु को, राइट? सो आई एम गिविंग यू 2 एटम बॉम्ब्स, यूज देम. एंड व्हाट आर यू गोइंग टू आस्क फॉर? मुझे सम्यक दर्शन हो जाए और मुझे मोक्ष हो जाए. 2 डिमांड्स नाउ. पहले 1 डिमांड थी, अभी 2 डिमांड आ गई है तुम्हारे. मतलब आई एम गिविंग यू 2 थिंग्स टू आस्क. एंड whom will you ask? सुदेव, सुगुरु, सुधर्म. 3 लोगों को तुमको को शरण लेना है, उनको बोलना है कि आई नीड इट, एंड उनका विनय करना है टू गेट इट. आर यू क्लियर? टाइम इज लेस. डज एनीबडी हैज मोर क्वेश्चंस? आंटी, सबसे पहले सम्यक दर्शन की स्पर्शना होती है, मतलब मोक्ष अगर जाना है किसी को तो, या सम्यक ज्ञान? सम्यक मैंने वो मोक्ष तत्व में जब करा रही थी तो बोला था, पहले ज्ञान आता है, ज्ञान के बाद सम्यक दर्शन जब आता है तो ज्ञान सम्यक बन जाता है, राइट? तो सम्यक दृष्टि जीव का ज्ञान सम्यक हो गया. तो अभी नाउ यू हैव सम्यक ज्ञान एंड सम्यक दर्शन. और जिसके पास दोनों चीजें हैं, तो ये सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन चारित्र लाता ही लाता है. दैट इज सम्यक चारित्र. वो लाता ही नहीं. इट इज नॉट योर जॉब टू डू चारित्र. इट इज दैट. वो ज्ञान आपको बोलेगा नहीं यार जाना है, यार मैं ये चारित्र करूँ, ये करूँ. दैट पुश विल बी गिवन बाय ज्ञान एंड दर्शन, बट यू नीड सम्यक दर्शन. सम्यक दर्शन के बिना डजंट वर्क आउट, राइट? एंड सम्यक दर्शन हमने सिर्फ ये सीखा आज कि इट इज द राइट एटीट्यूड एंड परसेप्शन, देखने का सही तरीका, ठीक है? मैं आप लोग, आपके पास कोई सवाल नहीं है तो मैं एक क्वेश्चन से एंड करती हूँ जिससे आपको समझ में आएगा हाउ दिस इज डिफरेंट और ये क्यों जरूरी है. आई गिव यू स्मॉल एग्जांपल. जनरली क्या होता है कि मान लो आपको गुस्सा आया हुआ है, लाइक पूजा, जस्ट टेकिंग योर केस, ओके, कि आई एम श्योर there will be 10 people who don't like you and would be saying अरे यार you are not a nice person, right? Pooja, I'm sure you would be having 10 people. Let us assume I am a person who's giving you gali, right? Saying Pooja is not a good person, she's really bad. Okay Pooja? हाँ? So तुमने मेरी बात सुनी, अब तुमको गुस्सा आ रहा है,
फर्स्ट रिस्पॉन्स क्या होता है व्हेन यू हियर समथिंग बैड अगेंस्ट यू? गुस्सा आता है कि नहीं आता है, राइट? गुस्सा आता है, विच इज अ नेचुरल रिफ्लेक्सेस. इसको बोलते हैं अनादिकाल के संस्कार आए कि उसने क्या बोला, गुस्सा हो जाओ, राइट? हाँ, तो उसके बाद सब लोग क्या तुमको बोलेंगे, नहीं क्षमा कर दो, आशिमा को क्षमा कर दो, राइट? और तुम बोलोगे सलाम मैं क्षमा करना चाहता हूँ पर मेरा गुस्सा खत्म ही नहीं होता. दिस इज हाउ द एटीट्यूड गोज, राइट? पूजा यू से आई वांट टू फॉरगिव इट, मैं क्षमा करना चाहती हूँ बट I can't forgive that person. I can't get that person out of my head. I can't क्षमा ही नहीं कर पा रही हूँ. Are you clear? Are you clear? And you can't do क्षमा to me, right? And मान लो तुम मुझे मुंह पे गाली नहीं भी दो, but अंदर से you were still, you know, damn irritated about it, and you understand? So अंदर से तुम्हारी क्षमा नहीं हुई. And मैं क्या बोलती हूँ, अरे यार क्षमा करूँ? जैन धर्म कहता है क्षमा करना चाहिए, क्षमा उत्तम धर्म है, ऑल दोस थिंग्स. एंड लाइक बॉस आई वांट टू डू, आई कांट डू. आर यू क्लियर व्हाई यू कांट डू पूजा? यू वांट टू नो बिकॉज तुम सम्यक दर्शन नहीं है, सही तरीके से इस इशू को नहीं देख पा रही. इस इशू को, इस केस को, इस सिनेरियो को सही तरीके से नहीं देख रही हो. तुमको लग रहा है कि मैंने तुमको गाली दी पूजा, राइट? और तुम्हारे साथ नाइंसाफी हुई, राइट पूजा? हाँ, नाउ इट इज योर जॉब टू डू क्षमा, राइट? जब सम्यक दर्शन होगा ना तब तुमको ये नहीं लगेगा कि मैंने तुमको गाली दी. तब तुमको पता है क्या लगेगा, मेरे कोई असाता वेदनीय कर्म का उदय था, मैंने किसी भव में किसी को गाली दी, राइट? ये आशिमा तो निमित्त है, ये बोल रही है पर मेरे कर्म उदय थे जिसकी वजह से ये बोल रही है, राइट? अब मेरा कर्म उदय होता और राइट और मैंने आशिमा को हटा दिया ना तो कोई और आदमी आशिमा की जगह आके मुझे गाली देगा, पर गाली तो बेटा पड़ेगी, राइट? इसमें आशिमा की क्या गलती, राइट? हाँ, ये सोच करके व्हाट विल यू थिंक, यार आशिमा की गलती नहीं है, हाँ वो गाली दे, दिख रहा है कि मैं गाली दे रही हूँ, सिंह पूजा वेरी लेजी, वेरी बैड, राइट? फिर भी तू मुझे देख के क्या बोलेगी, साला फिर कर्म उदय चालू हो गया मेरा. लाइक यू विल बी डैम इरिटेटेड विद योर ओन कर्म उदय. You'll be so pissed at your own कर्म उदय. You'll be so angry. ब्लडी पिछले भगों के अंदर मैं यही कर रहा था, गाली नहीं दे रहा था. I was mean and bad and nasty towards people. Really, I mean, understood? You will not be blaming me. You'll be blaming your own past self कि भैया मैंने क्यों ऐसे कर्म बांध दिए, फिर से कर्म उदय आ गया, राइट? हाँ, राइट? तो तुम मुझे गलत समझ ही नहीं रही हो पूजा इन दैट केस. नाउ टेल मी, इज इट इजी फॉर यू टू डू क्षमा? बिकॉज whom will you do क्षमा? तुम मुझे फॉल्टिंग, मतलब तुम मुझे गलत मान ही नहीं रही हो, तुम मुझे गलत समझ ही नहीं रही हो. तुम किसको गलत समझ रही हो? अपने कर्मों को, राइट? तुम मुझे गलत समझ ही नहीं रही हो तो क्षमा करने का सिचुएशन ही नहीं आती है, राइट? सो योर एंगर ऑल्सो गोज अवे ऑटोमेटिकली. अंडरस्टूड? सी देयर इज अ डिफरेंस इन बोथ ऑफ देम. एक बार मैं बाहर से बोलती हूँ क्षमा कर दे आशिमा को, आशिमा ने गंदा बोला ना क्षमा कर दे. एक तो भगवान, एक तो तुम क्या बोल रहे हो, भगवान बोल रहे हैं क्षमा कर दे, राइट? That is forced चारित्र मतलब क्षमा कर, that is outside force, right? जैसे ही सम्यक दर्शन आता है ना तो अंदर से देखने का तरीका ही चेंज हो जाता है, राइट? वो क्रोध को शट डाउन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है. मतलब यू डोंट हैव टू डू क्षमा टू मी. वो क्रोध ही नहीं आता है बिकॉज यू आर नॉट ब्लेमिंग मी एट ऑल. विक्टिम मेंटालिटी ही खत्म हो जाती है. आर यू अंडरस्टैंडिंग पूजा? सो सम्यक दर्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये देखने का सही तरीका है. देखना what is your perception and the attitudes towards that thing, right? That is why जब सम्यक दर्शन आता है ना तो आदमी बहुत सुखी होता है. He is pretty happy. So Swati, you are asking me the characteristics. How would I come to know that I am happy, right? The characteristics is you will be super happy. You will be super happy. Even though तुमको मुझे पढ़ रहे हो मेरा, you will be super happy, right? I mean, very weird scenario, but तुमको गालियां पढ़ रही होगी and you will be super happy, which is a very weird case, right? But this is another characteristics of सम्यक दर्शन. You'll be happy. अंदर से खुशी होगी. Are you understanding? Okay. So now, does everybody want सम्यक दर्शन? Is there anybody who does not want सम्यक dharsan, or does everybody feel no? I want सम्यक dharsan, right? Are you enthused about wanting सम्यक dharsan? Demand, desire? Are you desperate for सम्यक dharsan? Right? Who's not desperate? Somebody unmute yourself and say that I'm desperate or not desperate. Tell me and show me how desperate you are for सम्यक dharsan. Right? Ashima ji, I have this clarification to ask. Yeah. तो जब हम लोग को सम्यक दर्शन होगा
सो लाइक द वे यू सेड कि अगर कोई मेरे लिए बुरा बोला तो मैं अपने मतलब जो मेरे कर्म है जो उदय में आए हैं तो मैं उसी को दोष दूंगी. आई विल नॉट ब्लेम द अदर पर्सन. राइट? देखने का सही तरीका. वेरी गुड. राइट राशि. ओके. But Rashi, this is just one thing. There are millions of other dimensions, right? Okay. उसमें हर चीज जब सम्यक दर्शन होता है ना तो हर चीज परफेक्ट तरीके से देखती हूँ. इनफैक्ट मिथ्या ज्ञान, मिथ्या मतलब मैंने तुमको बताया ना ज्ञानवाणी कर्म में क्या बताया था मैंने, मिथ्या शुद्ध भी, हर तरीके के धर्म, हर तरीके के कुकिंग, ड्राइविंग, एवरीथिंग, हर चीज का ज्ञान, राइट? एवरीथिंग बिकम्स सम्यक. उस चीज में तुम उस चीज को सही तरीके से देख रहे हो. एवरीथिंग starts pushing you towards moksha. It is that great. हर dimension में your perception change. There is one more thing, आशिमा जी, सबका सही और गलत देखने का तरीका ही अलग होता है. So then how do we know if it's actually right what I'm saying? That is where you are wrong. ये जो तुम बोलो ना सही और गलत देखने का तरीका है, ये आता है ना तब वो सबका अलग अलग परसेप्शन होता है. पर अंदर से जो प्रकट होता है ना, सबकी आत्मा सेम है, सबका आत्मा एक ही बोल रहा है. Come to that. See, I will have a class after I have done मोहनीय कर्म. I will teach a day when मैं आत्मा क्या बोलता है और कर्म क्या बोल रहा है. I will show you. कर्म क्या बोल रहा है, आत्मा क्या बोल रहा है. Then you will come to know कि ये inner voice है. लोग ऐसे बोलते हैं, मेरे को ना राशि ने मेरे को बुरा बोला ना, मेरी इनर वॉइस थी, मेरी ना आत्मा की आवाज थी, उसको 2 गाली दे दूं, और मैंने उसको 2 गाली दे दी. लाइक दिस इज एंड दे यूज दिस वर्ड्स इनर वॉइस. मन करता था उसका 2 ठोक दूं, गाली दे दूं या ये बुरा कर दूं, यू नो. ये मन करता है, आत्मा की वॉइस है, इनर वॉइस है. यूज दिस टारगेट. दे डोंट रियलाइज वेदर इट इज इनर वॉइस मतलब आत्मा की वॉइस है कि कर्म की वॉइस है. यू हैव टू लर्न टू डिफरेंशिएट बिटवीन आत्मा's voice and what is karam. So you will learn what karam tells you, what an atma tells you. Okay? But we'll have to pass after Mohini Karam. Okay? Yeah. So right now, so Rashi, I have to wind up the class. So I'm just telling you one thing. Put Samyak Darshan as an aim. I've just told you it is really important. इसके बिना आपका progress ही नहीं, आपकी story चालू नहीं हो रही है. You need that, right? And all you need to do is take Sharana of Sudev, Suguru, Sudharam. एक समय चालू करो. हो सकता प्लीज आधा घंटा सुपात्र दान और चतुर्विधि संघ की किस तरह से मैं योगदान कर सकूं, उसको कंट्रीब्यूट कर सकूं. ये 2 चीजों पे सोचो. और सुपात्र दान के लिए यू डोंट इवन नीड एनीथिंग. यू जस्ट नीड टू गो एंड सिट आउटसाइड योर हाउस और आउटसाइड और इनसाइड योर हाउस बट नियर द डोर and think about a sadhu coming to your house and you giving them food or whatever they want, right? It's a winter time, everybody needs house, right? So think of all of these dimensions, and I think karmo ka kshay hona, I mean I want you to start thinking on those dimensions. Okay? ये मैंने atom bombs दिए हैं तुमको to destroy karms. Atom bomb मतलब literally इससे massive nature होती है. ठीक है? Okay, चलिए, I hope you are practicing all these things and आप सब धीरे धीरे सम्यक दर्शन को स्पर्शो और जो ऑलरेडी स्पर्श चुका है सस्टेन करना, टू रिमेन इन सम्यक दर्शन अवस्था और उससे गिर ना जाओ, मतलब परिवाही ना हो जाओ. इट्स ऑल्सो जॉब बाय इटसेल्फ. तो यदि सम्यक दर्शन की स्पर्शना हो गई है तो भगवान मुझे टिका के रखना सम्यक दर्शन स्टेट में, मैं फिर से मिथ्यात्व में न गिर जाऊं. इस डिमांड, ये भी डिमांड भगवान को बोल सकते हो. ओके? I hope you all practice all these things, Samay, Supatradan ki Bhavna, and Tirthi Seva, okay? And do a lot of Sharana for Samyak Darshan and Moksha, okay? Jai Jinendra. Jai Jinendra.